नहीं कोई बात नहीं भाई साहब, एक ही बात है, इससे क्या फर्क पड़ रहा है। Very good evening. I welcome all of you on behalf of Pusa Road Sikhi Study Circle on today's webinar on issues in filing ITR 7 and taxation of trust. On this subject, our very well-known elder brother CA Binod Rawal ji is with us. I welcome you, sir. I also welcome Sunil Damija ji, Hemant Pava ji, Ashok Gupta ji, Rajiv Kohli ji, and all the attendees on the behalf. To introduce very briefly our Binod Rawal ji. Rawal ji is a chartered accountant, law graduate, keynote speaker on tax and economic issues, YouTuber, influencer, and debater on tax and economic issues in electronic and print media. He also did DISA certificate course on international taxation from ICI and law graduate from Chaudhry Charan Singh University in 2019. Certificate course on anti-money laundering specialist from the Institute Chartered Accountants of India in 2021. He have a significant professional achievement, professional experience of more than 33 years in directors in direct tax, in tax litigation, FCRA, succession planning, trust and transfer pricing. He is a founder partner of V. Rawal and Company Chartered Accountant, New Delhi. He is a key economic analyst, debater in New Channel, News 10 English, India News Hindi, Navtej TV, Prime TV, and A to Z News. He is also a keynote speaker, columnist in leading newspaper and institutions. He is a part of NGO of India for social causes, charitable activities, former member of Celtex Advisory Committee of Government of NCT of Delhi, and also a former member of Direct Tax Committee of NIRC of ICI. This is the brief profile of today's speaker, CA Binod Rawal ji. I once again welcome you, sir, and over to you, sir. Rawal sir. Thank you, Rajesh ji. Thank you for this introduction. Thank you very much, respected Sunil Damija ji, Hemant Pava ji, Rajiv Kohli ji, my senior here. I think every time I really learn so many things from him when he is on screen. Thank you. बेसिकली आज का जो टॉपिक दिया मुझे राजेश जी ने और बाकी टीम ने मिलकर के, वो ट्रस्ट पे है ITR 7। वैसे तो सबसे मुश्किल काम मुझे दे दिया है, जिसको सारी TCS इन्फोसिस मिला के नहीं कर पा रही, वो राजेश जी मेरे से उम्मीद कर रहे हैं। रावल जी हम आप पे ट्रस्ट करते हैं, इसलिए ट्रस्ट दिया है। हाँ, मैं वही कहने वाला था सर। ट्रस्ट की डेफिनेशन ये है कि ट्रस्ट वो होता है जब किसी को आप सोचते हो बहुत ऑनेस्ट है, ये इसको पैसे छोड़ दो, ये आदमी बहुत बढ़िया रह जाएगा इसके पास। तो आई थिंक राजेश जी ने ट्रस्ट किया है, तो अब देखते हैं कितना हम एज ए ट्रस्टी बिहेव कर पाते हैं, एज ए गुड ट्रस्टी। Sir, I think a chartered accountant can do what Infosys and TCS can't do. आई एग्री विद यू सर, क्योंकि हमारी डिक्शनरी में असंभव शब्द तो होता ही नहीं। हमारे यहाँ कुछ नहीं होता सर, डेट बढ़े ना बढ़े, मतलब नहीं बढ़ी तो 3 बजे तक काम करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, हो तो जाएगा ही। तो ऐसा तो कभी कुछ हुआ ही नहीं। और फिर हम ऑलवेज वी आर हैप्पी। फेल होने के बाद खुश होने वाला सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है सर। तो उस दिन में लड्डू खा रहा होता है बैठ के कि चलो फिर कम अगेन है, कोई बात नहीं, अपने दोस्तों से फिर मिलेंगे जाके। तो क्या जी सर। चलिए, ये तो सब हमारे इसी लाइटर जोन में हम सब एक्चुअली जिंदा हैं, और ये हमें जिंदा रखे हुए हैं एक्चुअली। सो बेसिकली अगर हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़े, तो बेसिकली जैसा अभी कह रहे कि जी मैं एक सेकंड अपनी स्क्रीन शेयर कर दूं, थोड़ा इजी हो जाएगा। जी सर, जी सर। स्क्रीन विजिबल है सर मेरी? यस सर, यस सर। सो बेसिकली ITR 7 जो है वो आज की डेट में सबसे बड़ा वो बन गया। जो ट्रस्ट है वो सबसे ज्यादा डिस्ट्रस्ट हुआ पड़ा है। ITR 7 एक्चुअली राजेश जी, जब तक आपने नहीं कहा था तब तक मैंने अपने ऑफिस की भी चेक नहीं की थी कितनी फाइल हुई और नहीं हुई। तो जब करने लगा तो पता लगा अपनी भी एक भी नहीं हुई। वही का वही। कृष्णा मूर्ति जी कुछ रेज हैंड कर रहे हैं, कुछ देख लीजिए, कुछ इश्यू है तो आप। वो सब लास्ट में देखेंगे, हो सकता है कि शायद आपके कवर ही हो जाए उनकी क्वेरीज। हाँ, अभी देखते हैं सर। हाँ बिल्कुल, लास्ट में ही देखेंगे। कृष्णमूर्ति साहब थोड़ा सा वेट कर लीजिए,
एक्चुअली मैं रवि गुप्ता जी का और गिरीश आहूजा जी का चेला हूं, पर उनकी तरह क्वेश्चन नहीं ले सकता। वो तो चलते फिरते विकिपीडिया है, तो उनके साथ तो हम एक कदम भी चल लेंगे तो ऐसा लगता है कि कहीं जन्नत नसीब हो जाएगी कि आज देख लिया कुछ। तो बेसिकली क्या है सर, कुछ क्वेश्चंस को टेकल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि एक्चुअली ट्रस्ट है क्या, बेसिकली ये हमें दिया क्यों है। अगर मैं इस पे चलूं कि ऑब्जेक्टिव क्या है इस एग्जम्पशन का, हमको ये एग्जम्पशन क्या ऐसा शौक आया इस देश की सरकार को, क्योंकि सरकारें वैसे तो कुछ देती नहीं जब तक वोट ना मिले, तो मतलब ऐसा क्या शौक आया कि बोला सर चलो ट्रस्ट की इनकम को एग्जम्प्ट कर देते हैं। तो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड। तो मैं जब उसको ढूंढ रहा था तो मुझे जो उसके पीछे ऑब्जेक्टिव दिखाई दिया, वो ऑब्जेक्टिव ये दिखाई दिया कि जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो एनपीओज हैं और एनजीओज हैं, बेसिकली ऑलमोस्ट वही काम करती जो सरकारें करती, अमीर से लेकर के गरीब को देना। जो सोशल लायबिलिटी का जो कॉज है हमारे पास, बेसिकली वही सब काम ये सोसाइटीज भी कर सकती हैं, इसलिए इनको दिया गया। अब सेकेंडली कहा गया कि दे आर पार्टनर्स इन एडवांसमेंट ऑफ वेलफेयर एक्टिविटीज। तो पार्टनर्स हैं तो पार्टनर्स की तरह बिहेव करना पड़ेगा। तो सरकारों ने भी उसी हिसाब से अपनी पार्टनरशिप को निभाया और ये कहा कि चलिए वेलफेयर एक्टिविटीज में आप हमारे साथ शेयर कीजिए। सरकारों ने अपना शेयर डाला कि हम टैक्स आपसे नहीं लेंगे, वो टैक्स रिसाइकल होकर के वापस आ जाएगा। और तीसरी अगर हम बात करें कि जो रेवेन्यू फोरगॉन हुआ इसके अंदर जो टैक्स एग्जम्पशन से, वो बेसिकली उनका पर्पस था कि जो नेशन का जो डेवलपमेंट गोल है, जो विकास, सबका साथ सबका विकास जिसकी हम बात करते हैं, तो सबका साथ के अंदर जो पुअर ऑफ द पुअरेस्ट है उस तक वो दो रोटी कैसे पहुंचे, उस तक कैसे ये चीज जाए, उसको करने के लिए ये एक आसान तरीका मिला। और जब ये इनकम टैक्स एक्ट बनाया गया तो एक अलग से पूरे का पूरा सेक्शन 11, 12, 13 जो है इसमें डाला गया। और उधर से कुछ देखना सर, म्यूट करना, किसी की आवाज है बीच में कुछ है। एनीवे, तो बेसिकली 11, 12, सेक्शन 13 जो हमें दिया गया, सेक्शन 10 में कुछ सेक्शन दिए गए, अदरवाइज तो ये कहा गया कि किसी भी सेक्शन की जरूरत नहीं है। इसी 3 सेक्शंस के अंदर सारा टैक्सेशन का, ट्रस्ट का जो टैक्सेशन है वो यहां पे होगा। अब अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो बेसिकली ये 3 सेक्शंस हैं सिर्फ 11, 12, 13 जिसके आसपास पूरी ट्रस्ट की दुनिया घूम रही है। बाकी सेक्शंस जो हैं, पूरा इनकम टैक्स एक्ट एक तरफ है और ये 3 सेक्शंस हैं बेसिकली जो हमें ले जा रहे हैं कि ट्रस्ट को कैसे टैक्स किया जाए। तो इसको जब हम देखने लगे तो हमें पता लगा कि बेसिकली एग्जम्पशन इसलिए दिया गया कि जो चैरिटीज की तरह से पैसा लिया जाए, जो रिच है, जो अफोर्ड कर सकता है, जो चैरिटी करना चाहता है वो चैरिटी करे, और एनजीओज, एनपीओज के थ्रू और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू वो सोसाइटीज जो है वो आगे पहुंचाएं अपने पैसे को और उन एक्टिविटीज को। और अभी अभी जो हमने कोविड देखा, जिसमें जो हालत देखी हमने, उसके अंदर बहुत बड़ा रोल इन एनजीओज ने प्ले किया एंड हैट्स ऑफ टू देम। मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो अननेसेसरी एक अलग से कंट्रोवर्सीज खड़ी होती हैं क्योंकि यहाँ पे उस तरह की, लेकिन कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस निकल करके आई जिनको पद्मश्री भी दिए गए। इवन एक तो ऐसी एनजीओ थी जो डेड बॉडीज को क्रिमेट करती थी। मतलब आप ये देखिए, ये जो काम परिवारों का था, जो परिवारों ने छोड़ा, सरकारों ने छोड़ा, उसको भी एनजीओज ने अपने हाथ में लिया और इस तरीके से उसको हैंडल किया कि हमें पता ही नहीं लगा। मतलब जिसके साथ परिवार में हादसा हो गया वो तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, परेशान है वो। अदरवाइज अगर आप देखें तो कोविड से जो लड़ाई इंडिया ने लड़ी, जो हिंदुस्तान ने लड़ी, वो पूरी दुनिया को एक सबक की तरह है कि कैसे लड़ा जाता है। पूरा देश खड़ा हो गया उसके लिए, सोसाइटीज, एनजीओज खड़ी हो गई, हमारी अपनी जो बॉडीज हैं जिनका काम पैसा कमाना है, जो एसोचैम, आपकी फिक्की, हमारी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के जो वेलफेयर हैं, इवन मैं मेंबर हूं सेल टैक्स बार एसोसिएशन का भी, मैं टैक्स बार एसोसिएशंस का जिनका भी मेंबर हूं। मतलब कोई ऐसी एनजीओ नहीं थी जो आगे ना आई, जिसने कॉल ना दिया हो कि हम कैसे करें अपने अपने तरीके से। जब कोविड का टाइम आया कैसे ये चीजें चली, तो मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड पे से ले जा रहा हूं। मुझे पता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का इंटरेस्ट थोड़ा सा इन चीजों में कम है कि हम क्यों ना जल्दी से खाली टैक्सेशन पे जाएं, पर मुझे लगता है कभी कभी हमें जिंदगी जीनी भी चाहिए। 2 और 2 4 करते करते हम एक्चुअली रियल लाइफ भूल चुके हैं कि हमें एक्चुअली व्हाई वी आर इन दिस वर्ल्ड।
सो आई जस्ट वांटेड टू टेक यू टू दैट। अब चलते हैं बेसिकली आगे, हमारी जो मेरी पीपीटी जो है वो किस तरह से आगे चलेगी और कैसे हम करेंगे। तो जो एजेंडा है मेरा आज का, सबसे पहले तो हम ITR 7 की बात करेंगे। और ITR 7 में इशू आता है कि कौन एलिजिबल है। ये एक बहुत बड़ा इशू है, ITR 5 वर्सेस ITR 7। मैंने ज्यादा उसको नहीं रेज किया क्योंकि वो अपने आप में एक टॉपिक है। तो बेसिकली सिर्फ इतनी सी बात थी कि एलिजिबल 7 के लिए कौन है, 5 को बाद दे देते हैं। तो क्या 7 वाला भी 5 फाइल कर सकता है? इस इशू को ब्रीफ में लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली हम 7 पे चलेंगे। देन देयर आर इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। जो डेफिनेशंस हैं जो बेसिकली टैक्सेशन ऑफ ट्रस्ट के अंदर हमारी यूज होती हैं ज्यादा, हम उनकी बात करते हैं। देन डीम्ड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। कुछ कल पढ़ते पढ़ते कुछ बहुत सारी एक दो चीजें इंटरेस्टिंग ऐसी आई, क्योंकि हम लोग भी अमेंडमेंट्स को उतना फॉलो नहीं कर पाते। जब चीजें सामने पढ़ने लगो, एक्चुअली इन वेबिनार्स का एडवांटेज ये होता है कि स्पीकर लर्न्स ए लॉट, क्योंकि उसको होमवर्क करना पड़ता है। जब वो पढ़ता है तो उसको बहुत सारी चीजें जो नहीं पता होती वो अपडेट हो जाती हैं इसी बहाने से। सो देयर आर डीम्ड एप्लीकेशन, दो उसके अंदर टॉपिक्स हैं। मुझे पता है सीनियर्स आर देयर, एवरीबॉडी नोज इट, बट ऑनेस्टली फ्यू थिंग्स आई केम टू न्यू। परसों मुझे एक मेल मिली थी, शायद आप सब लोगों को भी कहीं ना कहीं आई होगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक वेबएक्स मीट था जिसके अंदर टेक्निकल सॉल्यूशंस उन्होंने देने की कोशिश की। तो वेबएक्स मीट तो मैं नहीं अटेंड कर पाया, अगर किसी ने किया हो तो आप में से जरूर बीच में से बताइएगा लास्ट में कि क्या था उसमें। पर उन्होंने 2 सॉल्यूशंस हमें दिए थे, तो मैंने सोचा मैं उसको अपनी पीपीटी का पार्ट बना देता हूं, क्योंकि मैंने कल जब वो यूज किए तो मेरी 10 भी उसके बाद बन गया, जो पहले नहीं बन पा रहा था। तो दैट इज ए गुड सॉल्यूशन गिवन बाय द टेक टीम ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। देन थोड़ा सा ब्रीफ टच करेंगे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स 2020 की जो आई थी, जिसमें रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चेंज हुआ था, जिसके अंदर 115 TD की इंपॉर्टेंस बढ़ गई, 11(7) बढ़ गया। एक और अमेंडमेंट जो आई थी बेसिकली, जो अभी 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर 21-22 में एप्लीकेबल है, बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ डोनेशन हमको फाइल करना है 31 मई में। तो वो बेसिकली आई एम ट्राइंग टू टेक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु आर एलिजिबल टू फाइल ITR 7? ITR 7 बेसिकली एप्लीकेबल है, ये 139 सेक्शन इनकम टैक्स वाला जो रिटर्न्स का है उसके अलावा है 139 सब सेक्शन 4 कैपिटल ABCD। ये 4 जो सेक्शंस हैं बेसिकली, ये चारों अलग अलग असेसीज के लिए डिफाइंड है कि अगर आप चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट की कर रहे हैं, ITR फाइल करना चाहते हैं, आप फाइल करेंगे 139(4)A में। पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्टोरल ट्रस्ट की है तो 4B, साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है 4C, एंड यूनिवर्सिटी कॉलेज और इंस्टीट्यूट खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज 4D। तो बेसिकली ये है। यहां पे क्वेश्चन आता है कि ITR 5 वर्सेस 7 क्या है। इससे पहले हम आगे बढ़े, हम थोड़ा सा इसी पे आ जाते हैं। अगर मैंने 5 को मैंने थोड़ा सा निकालने की कोशिश की, ITR 5 का फर्स्ट पेज, इट सेज फॉर पर्संस अदर देन इंडिविजुअल्स। तो इंडिविजुअल्स के लिए नहीं है, HUF के लिए नहीं है, कंपनी के लिए नहीं है। एंड नंबर 4 जो कहता है पर्संस फाइलिंग ITR 7, तो जो पर्संस ITR 7 फाइल कर रहे हैं उनके लिए ITR 5 नहीं। अब बात आएगी आगे जाकर के कि ITR 7 किसके लिए है, तो जिसके लिए 7 है उसके लिए 5 है ही नहीं। अगर इसी की इंस्ट्रक्शंस में जाता हूं ITR 5 की, तो वहां पे जाके बात वो करता है, मैं सिर्फ लास्ट की लाइन पढ़ रहा हूं, हु इज एलिजिबल टू यूज दिस रिटर्न फॉर्म। आई एम टॉकिंग अबाउट ITR 5, नॉट 7। This form can be used by a person being a firm, LLP, AOP। उसके लिए चलते चलते लास्ट में आता है ये प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी। Yes, this form can be used by a person being a firm, LLP, AOP, BOI, AJP referred to in clause 7 of 2 subsection 31, local authority so and so representative assessee referred to in section primary agriculture credit society, cooperative bank other than a primary agriculture credit society or a primary cooperative agriculture society. Any other cooperative society registered under Societies Registration Act 1860 or under any other law of any state, trust other than trust eligible to 5 ITR 7, then a state of deceased person, a state of an insolvent business, 4F 4D की बात कर रहा है, 4E. However, I'm reading the last line. However, a person who is required to file the return of income under section 139
सब क्लॉज 4 कैपिटल A, B, C, A, B और D shall not use this clause. So this is not meant for them. So ITR 5 is basically for those trusts who are not eligible to 5, 7. 7 is for those जिनके लिए 11, 12 sections apply होते हैं, जो 12 में registered है basically. तो कहने का मतलब unregistered इधर चले गए और registered इधर चले जाएंगे. Now if I go to important definitions की बात अगर हम करते हैं, there are different definitions sir. Section 2 subsection 15 charitable trust की बात करता है. He talks about section 2 subsection 15. Then section 10 subclause 23C exempt income clauses for trust. मैंने C अलग से डाल दिया, थोड़ा सा excuse कर दीजिएगा मुझे, PPT में ठीक कर दूंगा मैं. Section 11 है income from property held for charitable or religious purposes. Section 12 बात, पहले वाला 11 बात करता है प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर चैरिटेबल, 12 बात करता है इनकम ऑफ ट्रस्ट की. तो जो आपने बात की थी कि ट्रस्ट हमने आप पे किया है, तो दैट इज बेसिकली हेल्ड है. तो अगर मेरे पास कुछ पैसे भेज देंगे तो इनकम आ जाएगी, दैट विल बिकम इनकम ऑफ दैट. सो सेक्शन 12AB इज बेसिकली प्रोसीजर फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन. 13 is 11 and 12 not to apply in certain cases. So basically मैं बात कर रहा हूं कि ये सेक्शंस थोड़े थोड़े हैं, ब्रीफ, इसी बहाने पढ़ लेंगे. हम लोग कम पढ़ते हैं क्योंकि हम थोड़ा सा ऑडियो में ज्यादा विश्वास कर लेते हैं. सेक्शन 2 सबसेक्शन 15 जो बात करता है, जिसको चैरिटेबल पर्पसेस की बात करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट दैट, वन इज रिलीफ ऑफ द पुअर, सेकंड इज एजुकेशन, देन इज योगा, योगा वी नो इट वाज एडेड अर्लियर, मेडिकल रिलीफ, preservation of environment including watersheds, forests and wildlife, and the next to add हुआ advancement of any other object of general public utility. So this is a very broader sense. ये थोड़ा सा importance इसलिए भी हमारे लिए ज्यादा है इस सेक्शन की, क्योंकि जो नई अमेंडमेंट्स आने के बाद अब आप रजिस्ट्रेशन जिस ऑब्जेक्ट के लिए लेंगे, अगर आप उससे डेविएट करते हैं, then you cannot, you have to file an amendment immediately. If you don't file that, you are in trouble. So there is a timeline, will be coming to you in the coming slides. Actually time is very short and this topic is very broad, honestly I'm telling you. This is very broad and you cannot take up each and everything in one go. So if we talk about, अब अगर सेक्शन 215 की बात करते हैं, तो उसके अंदर यही सिर्फ एक्टिविटीज हैं जो चैरिटेबल पर्पसेस हैं. रिलीजियस पर्पसेस की कोई डेफिनेशन कहीं दी नहीं हुई है. तो रिलीजियस बेसिकली ये है कि आप जो नॉर्मल पार्लेंस में हम यूज करते हैं रिलीजियस के लिए, वही यहाँ यूज करके हम आगे जा सकते हैं. बट रिलीजियस को 12 नहीं मिलता, बट ATG आपको रिबेट्स मिलते हैं. 1023C की अगर हम बात करें, मैंने बहुत ब्रीफ में डाला, मैं पूरा सेक्शन नहीं डाल रहा हूं. बेसिकली माय मोटिव वाज जस्ट टू टेक यू टू दैट सेक्शन. एक्ट सबके पास है, हम लोग 1 सेकंड में पढ़ सकते हैं, बट these are the main definitions which are meant to be read by everyone before starting filing ITR 7. इनकम टैक्स रिटर्न एक फॉर्म है खाली, उसके अंदर जब भरना है, जब वहां पे हम जाते हैं तो इंस्ट्रक्शंस हमें साथ रखनी पड़ती है, देखना पड़ेगा कहां पे क्या रिप्लाई करना है, क्योंकि अब वो पुराना वक्त नहीं रहा राजेश जी जो हमारे वक्त में था कि दे आए, फिर कोई गलत हो गया, कोई बात नहीं, पेज बदल लेंगे. नाउ डेज हैव गॉन. आई थिंक कोहली जी भी स्माइल दे रहे हैं, क्योंकि हम सब लोग इस दौर में थे, सर कोई बात नहीं, ऊपर का पहला पेज रहने दो ना, नीचे के 40 बदल देते हैं. तो नाउ सिचुएशन इज दिस के अजर अमर हो गया है कि आपने एक बार फाइल कर दिया तो उसके बाद 143 1A की एडिशन होकर के डिमांड आपके पास खड़ी होती है और एसएससी सामने खड़ा होता है. एंड द फिगर्स हैव नाउ माइंड बॉगलिंग. अब करोड़ों रुपए की फिगर्स की डिमांड आती है. वो दिन भी गए जब सैकड़ों हजारों में डोनेशंस चैरिटीज हुआ करती थी और थोड़ी सी टैक्सेशन थी तो फर्क नहीं पड़ता था. नाउ फिगर्स आर इन सच ए, मतलब वन मिस्टेक, वन नॉट टिकिंग एट वन प्लेस. इफ आई से यू माय मिस्टेक, लास्ट ईयर वी फाइल्ड ए रिटर्न ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी, तो शेड्यूल LA जो था हमने अपनी तरफ से भरा था, लेकिन कहीं एक जगह पे हमने टिक लगाना छोड़ दिया, फॉर्म ने उसको खाली छोड़ दिया. हम आगे आएंगे वो कितना मैंडेटरी है. तो जितनी मेरी रिसीट थी उस पे MMR लग के टैक्स आ गया, एंड दैट इज इन करोड़. एंड ठीक कराना उसको एक इतनी भारी समस्या बन जाती है अपने आप में. पहले तो समझ नहीं आता करें क्या, क्योंकि जब तक समझ आया तब तक 1 साल बीत गया, रिवाइज हो नहीं सकती. सो नाउ ओनली वे इज रेक्टिफिकेशन. एनीवे, दिस इज 1023C, एनी इनकम रिसीव्ड बाय एनी पर्सन. सो बेसिकली 1023C बात करता है एनी इनकम रिसीव्ड बाय एनी पर्सन.
तो एनी यूनिवर्सिटी, एनी हॉस्पिटल, जिसके लिए हम मेन पढ़ेंगे आगे जाकर के, वो अगर जो इनकम अगर लेती है बाय एनी पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ, तो यूनिवर्सिटी अगर ले रही है तो एजुकेशन के लिए ले रही है, यूनिवर्सिटी के लिए स्पेंड कर रही है, तो उनको एग्जम्पशंस जैसे जैसे मिले हुए हैं। तो 1023C बेसिकली इज ए डेफिनेशन सेक्शन जो हमें पढ़ के, और 1023C 3AB 3AD पे जो हमें जाना है नेक्स्ट में, तो विल गो देयर। ये है 1023AB। ये कहता है ये स्पेसिफिक एग्जम्पशन है, दिस इज अ स्पेसिफिक एग्जम्पशन for yes, specific exemption available to certain government and non-government universities। ये दोनों के लिए मैंने गवर्नमेंट वाली इंटेंशनली पहले छोड़ दी है, जो हमारे ज्यादातर मेंबर्स जो हैं वी आर नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड ऑल दैट, सो उसको आई एम इग्नोरिंग इट बिकॉज नॉट टू वेस्ट टाइम ऑन दैट। 1020 then income received by any university or educational institution, now it is, earlier it was 1 crore, now it is 5 crore, it is fully exempt basically, but audit has to be done in this case। then we are coming to 3AD, ये basically बात करता है मेडिकल की। then आपका है एजुकेशनल और मेडिकल विद एनुअल एक्सीडिंग टर्नओवर। ये बेसिकली 4 सेक्शंस हैं। जो डी है वो रेप्लिका है, बी का सिर्फ उसके अंदर चेंज होता है। तो बेसिकली आई एम स्किपिंग इट, as I'm saying, I will be coming to ITR 7 instead of investing time on this, because we have already done all these things at the time of registration of charitable trust. Now comes another definition, section 11, which is very important. It says subject to the provisions of section 60 to 63। इसमें भी कंडीशनल है कि आपको 60 और 63 पे जो है वो वहां पे रेवोकेबल ट्रस्ट की बात करता है, और उसकी बात करता है 61 और में जाके, the following income shall not be included in the total income of the previous year of the person in receipt of the income. So we'll notice that section 11 talks about the total income to be included here only, subject to 60 and 263. Now, what are the properties? 11 talks about income derived from property held under trust, wholly for charitable or religious purposes, to the extent to which such income is applied to such purposes in India. There is a specific condition, sir, which generally is a question in the webinars. Can I do charity in USA? So there are specific things, there are specific exceptions are there. Only it is covered, otherwise it is only in India. So it is not there. So these are the conditions to avail section 11 benefits. This is available only to trust oblique institutions. Now institution include company, means section 8 companies are included, which holds the property in trust. This is the word, sir, which was used in the beginning, that the property has to be held in trust only. Nobody becomes owner of that. You are only a trustee. You are holding that as a custodian of someone else. Trustee means you are custodian, wholly for charitable purpose or religious purposes. Then there is a condition of creation of a trust, which is meant for wholly for charitable purposes or wholly for religious purposes. It should not have been created for the benefit of particular religious community or caste. Again, there are certain exceptions are there for scheduled caste, scheduled tribes, OBCs. There are certain case laws also. I'm not going into those nitty-gritties today. Basically, it should not be carrying any business. Trusts are not allowed to do business, but we know that there was an amendment few years back. Then there are certain now limits has been laid down in section 215, which we talked in the beginning. The objects of the trust should be charitable, covered within the meaning of section 2 subsection 15. We talked the 6 conditions there, and only those objects are there, and सोसाइटी को या ट्रस्ट को उसी के लिए ही काम करना है। एग्जम्पशन इज अवेलेबल टू इनकम अप्लाइड। खाली इनकम सीधी सीधी आने से नहीं है सर, आपको अप्लाई भी करनी। जब आपको अप्लाई करनी है तो उसका फॉर्मूला, आई थिंक मोस्ट ऑफ वी ऑल नो दैट इट इज 15% हटा के बाकी 85% की बात करनी है सारी के साथ। 15% तो मैं एक्यूमुलेट कर ही सकता हूँ ऑलवेज, तो 85% मुझे स्पेंड करना है। अगर मैं एप्लीकेशन नहीं करता हूं, इसका सिस्टम हमारे नॉर्मल अकाउंटिंग से डिफरेंट है। इवन कैपिटल एक्सपेंडिचर इज कवर्ड इन एप्लीकेशन ऑफ, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस सेक्शन वेरी कंप्लीटली।
income of the trust and the property is utilized for charitable purposes in India. So income of the trust, again we are coming back again, it's a charitable purpose. Income of the property of the trust does not ensure for the benefit of the settler author. I will add so many names also. It is not only settler author, it's a managing trustee. But section 13(3) talks about that कि आप अपने फायदे के लिए नहीं करेंगे किसी भी चीज को. तो अदरवाइज तो राजेश जी फिर आप ही स्पीकर होंगे, आप ही सुनने वाले होंगे. आप, it has to be done for the benefit of everyone. So once you do for the benefit of the society, then it is basically section 11 gives you that exemption, otherwise it does not give you. Now basically it comes to what is the contribution, conditions for availing. Yes, we are talking about section 12. Income of trust or institutions from contributions. Any voluntary contributions received by a trust created wholly for charitable or religious purposes or by an institution established wholly for such purposes. कोई भी voluntary contribution जो trust ने receive किया है wholly for charitable or religious or by an institution established, लिया सिर्फ institution ने लिया, shall form part of corpus of the trust or institution. अगर वो किसी specific purpose के लिए आ रहा है तो वो corpus का part है, otherwise वो नॉर्मल मेरा वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन का पार्ट है. अगर वो कॉर्पस नहीं, मेरे साथ स्पेसिफिक डायरेक्शन है तो वो कॉर्पस का पार्ट है. फिर मेरा वो इसमें 85% की कंडीशन नहीं आती है, मैं उससे बाहर निकल जाता हूं. देन आई एम लेस स्पेंडिंग ऑन टाइम ऑन दिस. द वैल्यू ऑफ एनी सर्विसेज बीइंग मेडिकल और एजुकेशनल सर्विसेज मेड अवेलेबल बाय एनी चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट रनिंग ए हॉस्पिटल और मेडिकल इंस्टीट्यूशन और एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. किसी भी तरह की कोई सर्विसेज कुछ भी हम रिसीव करते हैं to any person referred to in clause A or B or C or CC or D of section 13. अगर हम उसके अंदर देते हैं shall be deemed to be the income of such trust or issue derived from such property held under trust wholly for charitable or religious purposes during the previous year in which such services are so provided and shall be charged to income tax. ये सब explanations हैं उसकी, मैं थोड़ा सा इस पे. Now it comes notwithstanding anything contained in section 11. I think it talks about earthquakes in Gujarat. पुराना हो गया. चलिए सेक्शन 13 पे आते हैं. सेक्शन 13 हमें कहता है ये वो सर्कमस्टांसेस देता है जब 11 और 12 अप्लाई नहीं होगा. जब हमने 11 पढ़ लिया, 12 को भी देख लिया, लेकिन 13 हमें एक तरह से स्पीड ब्रेकर की तरह रोक देता है. वो कहता है साहब रुक जाइए, पहले जरा मेरी तरफ भी देख लीजिए. आपको 11-12 की एग्जम्पशंस तब देंगे जब आप में ये जो सिचुएशंस हैं ये वाली अगर आप नहीं कर रहे हैं इधर, लेकिन अगर आप ये सिचुएशंस नहीं कर रहे हैं तो आप इसको 11 और 12 का बेनिफिट ले सकते हैं, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा. तो ओनली इन दैट सर्कमस्टांसेस आपको ये मिलेगा. जस्ट गिव मी अ सेकंड सर, जस्ट आई एम जस्ट होल्डिंग. अगर मैंने कोई प्राइवेट मंदिर अपना खोला है, प्राइवेट रिलीजियस पर्पसेस के लिए खोला है, तो मुझे सेक्शन 13(1)(a) में मुझे बेनिफिट्स नहीं मिलते. सिर्फ उस केस में मिलते हैं जब मैं पब्लिक के लिए करता हूं. मोटा मोटी सिर्फ इसके अंदर बात यही है. दूसरा, मैं अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए कोई काम नहीं करता, ना मैं ट्रस्टीज के लिए करता हूं, ना मैं किसी तरह का उनको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिट पहुंचाता हूं. अगर मैं इनमें से कुछ भी कर देता हूं तो मुझे 11 और 12 का बेनिफिट नहीं मिलेगा. 11 के अंदर मेरी इनकम टैक्सेबल हो जाती है. जितना 12 में वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन आया वो सब उसका एक नॉर्मल असेसमेंट हो जाएगी, मेरी एओपी की तरह से उसमें चला जाएगा. ये कहता है कि ऑथर ऑफ द ट्रस्ट जो है वो बेनिफिट नहीं ले सकता. जिसने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया हो 50,000 से ज्यादा का, वो खुद ही बेनिफिट ले रहा अपने परिवार के लिए, तो फायदा क्या देने का भाई. तुमने एक हाथ से दिया, दूसरे से ले लिया. उसके बाद उस एचयूएफ को भी बेनिफिट नहीं मिलेगा जिसके अंदर वो ऑथर या फाउंडर या पर्सन है. एनी ट्रस्टी,
आप कोई भी नाम रख दीजिए, नहीं मिलेगा। एनी पर्सन रिलेटेड टू सच। अब रिलेटिव की डेफिनेशन हम सब लोगों को पता है क्या होती है, ज्यादा उस पर डिटेल में नहीं जाते। सब लोग जानते हैं कि रिलेटिव की डेफिनेशन क्या है। जहां ब्लड रिलेशन है, अब तो बहुत डिफाइन कर दिया इनकम टैक्स ने, इस पे मैं ज्यादा टाइम इस पे नहीं लगाते हैं, आगे चलते हैं। एनी कंसर्न, अब सवाल आता है, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पार्टनरशिप फर्म है या कुछ ऐसा, वो भी सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए उसके अंदर। सब्सटैंशियल की डेफिनेशन भी ऑल 13(2) बात करता है कि किस तरह से हो सकता है कि बेनिफिट्स दिए जा सकते हैं। जस्ट थोड़ा सा एक लिस्ट है। ग्रांटिंग ऑफ लोन्स, यूजेज ऑफ प्रॉपर्टी विदाउट एनी कंसिडरेशन, रेंट नहीं ले रहे, दे दिया। 1 करोड़ रुपया चैरिटी आई थी, 1 करोड़ रुपया उधर लोन दे दिया। एक्सेसिव पेमेंट दे दी, सर्विसेज के अगेंस्ट देने थे 50 रुपए, दे दिए 50,000 रुपए। इफ द सर्विसेज ऑफ द ट्रस्ट आर अवेल्ड बाय द पर्सन रेफर्ड टू इन सेक्शन 13(3) but remuneration is not being met. सर्विसेज, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी की कंसिडरेशन का वेरिएशन है कि उसकी फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा पैसा दे दिया उसको, सर्कल रेट है, सब कुछ है। उन सबको देखते हुए ये सब उसकी कंडीशंस के हिसाब से हम चल रहे हैं कि बेसिकली हम किसी भी तरह से ट्रस्टीज के, मतलब अगर आप इसको ध्यान से इस पूरे स्कीमा को समझेंगे तो आपको स्कीम समझ आ जाएगा कि अल्टीमेटली मोटिव ये है कि जो डोनर है या जो मेन हेम ऑफ अफेयर्स में लोग बैठे हैं, जो ट्रस्टीज हैं, किसी भी तरह से जो उस पैसे को यूज करने का इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो अपने यूज के लिए उस पैसे को ना करना शुरू कर दें। बहुत सारे केसेस हम यही सब देखते हैं, जो हम देख रहे हैं कि कैसे कैसे न्यूज हाउसेस के केसेस हैं कि आपने ट्रस्ट के नाम से प्रॉपर्टी ली, उसके बाद खुद को ही रेंट आउट कर ली बहुत थोड़े से पैसों के लिए। आपको कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया में इस तरह की प्रॉपर्टीज बहुत मिलेंगी जो फॉग इंस्टीट्यूशंस को मिली हुई है। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी, बट बहुत सारी ऐसी आपके सामने आएंगी जहां बहुत कम रेंटल्स पे हैं। बहुत कुछ सरकारें इसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही, क्योंकि बेसिकली एक बात सबको समझ आ गई है कि ये जो ट्रस्ट है इसका मिसयूज तो हुआ है। पिछले दिनों में काफी इसका मिसयूज हुआ और बहुत क्रैकडाउन हुआ इसके ऊपर। एफसीआरए के अंदर बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस कैंसिल हुई। कल परसों भी सुनने में आ रहा है कुछ, यहाँ भी बहुत कैंसिलेशंस होने जा रही हैं हमारे इसमें इनकम टैक्स एक्ट में भी, कि जो सोसाइटीज जो है जो नॉर्मल वर्किंग में नहीं है, दिखाई नहीं दे रही। तो थिंग्स आर हैपनिंग सच ए वे। ये लिस्ट और लंबी है सर। सेल ऑफ प्रॉपर्टी टू एनी पर्सन रेफर टू इन 13(3) एट ए रेट मच लोअर देन, पहले हमने हायर की बात की थी, अब हम लोअर पे आ जाते हैं कि रेंट कम ले लिया, सेल कर दी प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू 5 करोड़ रुपए आपने 50 लाख में दे दी, तो वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली जिसकी हमने बात की थी। इफ एनी इनकम और प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन डाइवर्ट कर दी, और देखिए डाइवर्जन में वैल्यू क्या, 1000 रुपीज, 1000 रुपीज से भी ज्यादा है तो भी ये सेक्शन अप्लाई हो जाता है। इन्वेस्टमेंट ऑफ ए सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हेल्ड बाय एनी पर्सन रेफर टू इन 13(3) where the aggregate of the fund invested in such concern does not exceed 5% of the capital, exemption will be denied। ये कुछ केस लॉज में से और कुछ 13 का जो मैं देख पाया जितना उसके अंदर है। 13(3) प्रोहिबिट करता है कि ट्रस्ट जो है उन कंसर्न्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा जिसके अंदर ऑलरेडी आपके ट्रस्टीज जो हैं वो ऑलरेडी सफिशिएंट है। डोनेशन मेड दो इज नॉट कंसिडर्ड एज एन वायलेशन, कि अगर आपने डोनेट किया है पैसा, वहां पे कुछ ऐसे नीडी लोग थे जो प्रूव हो जाता है, तो भले ही वो ट्रस्टीज के नोन हो, क्योंकि अल्टीमेटली तो कहीं ना कहीं से तो कनेक्ट आएगा ही आएगा। ये तो वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, ये तो पॉसिबल नहीं है। ट्रस्टी तो बताएगा सर वहां एक इंस्टीट्यूशन है, वहां की जो लेबर है दे नीड फूड, तो लेट अस सेंड देम फूड एवरी डे। आई एम टॉकिंग अबाउट एक कोविड सिचुएशन की बात कर रहा हूं कि जिस वक्त फूड चल रहा था, क्योंकि मैं खुद भी एक पार्ट था एक ऑर्गेनाइजेशन का, रोटी बैंक करके, जिसके अंदर यही सब होता था। तो बेसिकली ये उसका पार्ट। तो सेक्शन 31D जो है वो प्रोहिबिट करता है बेनिफिट्स टू द कंसर्न पर्सन बट ट्रांजैक्शंस आर अलाउड प्रोवाइडेड आर्म्स लेंथ पे हो, गुड्स एंड सर्विसेज जो है वैल्यूज सर्विसेज की एक्सेसिव ना हो, आप ट्रांजैक्शंस कीजिए, कोई मनाही नहीं है। बट सवाल वही आता है कि हो कितनी पाती हैं अल्टीमेटली, तो फिर हम वहीं आ जाते हैं कहीं ना कहीं घूम घाम करके। अब मैं आ रहा हूं अपने उस टॉपिक पे जो बेसिकली फाइलिंग ऑफ ITR 7। ITR 7 की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो स्ट्रक्चर इंस्ट्रक्शंस में दिया हुआ है, मैंने वहां से उठाया इसको,
बेसिकली ITR 7 को इन्होंने इस ढंग से डिवाइड किया है कि आप जिस सेक्शन में जा रहे हैं उससे पर्टिकुलर रेलेवेंट जो है शेड्यूल्स आपको फिल करने पड़ेंगे। जैसे हमारी ITR रिटर्न जो बिजनेस वाली भी हम फिल करते हैं, जब हम बिजनेस इनकम की बात करते हैं तो अकॉर्डिंगली हमारा शेड्यूल BP और वो सब खुलते हैं, तो अकॉर्डिंगली हम डेप्रिसिएशन वो सब लेते हैं। यहाँ पे जब हम 139 4A फाइल करते हैं तो 4A के शेड्यूल्स फाइल करने मैंडेटरी हैं। इसी तरह से 4B से पॉलिटिकल पार्टी है तो पॉलिटिकल पार्टी का शेड्यूल है। मैं आगे चल रहा हूं। तो इसी तरह से आप जिस बेसिकली पूरे फॉर्म्स के डिफरेंट सेक्शंस, तो आप सेक्शन से मेरा मतलब मैं स्लाइसिंग करके बात कर रहा हूं। मैं सेक्शन वो अपने इनकम टैक्स के सेक्शंस की बात बाद में करते हैं। मैं स्लाइस कर रहा हूं पूरे फॉर्म को, बेसिकली बटा हुआ है डिफरेंट स्लाइसर्स के अंदर। तो जब आप एक पार्ट को उठाते हैं तो उसी से रेलेवेंट चीजें आपको जो है फिलअप करनी है। जनरल इंफॉर्मेशन तो सारी देनी है, ऑडिट होना ही होना है। तो ऑडिट के भी क्योंकि डिफरेंट सेक्शंस हैं जिसके अंदर हमें ऑडिट करना है। तो ये शेड्यूल्स हैं। शेड्यूल I है, शेड्यूल J, K, LA, ET एंड VC, ये सबसे इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स हैं हमारे। देन कम शेड्यूल AI, एग्रीगेट ऑफ इनकम डिराइव्ड ड्यूरिंग द ईयर। शेड्यूल ER, EC, IE, HP, CG, OS। देन OA, शेड्यूल BP है अगर किसी की बिजनेस इनकम है तो। उसके बाद करंट ईयर लॉसेस को सेट ऑफ करने के लिए, क्योंकि एक्चुअली अपने आप में एक कंप्लीट फॉर्म है, सब कुछ यहीं से आपका आना है। बाकी के सेक्शंस में हमको जाना नहीं है। कैपिटल गेन के लिए हमको कैपिटल गेन में नहीं जाना, बिजनेस इनकम के लिए बिजनेस इनकम के सेक्शंस में 37 में नहीं जाना, हमें अल्टीमेटली यही रहना पड़ेगा, 36 37 में नहीं जाना। तो सारी जो असेसमेंट है वो 11 12 13 में आएगी। तो इसी फॉर्म को इतना एग्जॉस्टिव बनाना पड़ा इनको कि सब कुछ यही डालना पड़ेगा। तो लास्ट में एक सेक्शन है 115 TD, तो ये शेड्यूल है उसका 115 TD। ये बेसिकली इसके बारे में हम अभी बात करते हैं थोड़ी देर में। ये उसके बाद ये शेड्यूल्स हैं फर्दर। ये मैं कुछ आपको जो बात कर रहा था कि कुछ ऐसे शेड्यूल्स हैं जो बेसिकली इन्होंने कनेक्ट कर दिए हैं आपके फाइलिंग के साथ ही। तो ये है कि आप किस सेक्शन में एग्जम्पशन क्लेम कर रहे हैं, उससे रेलेवेंट कौन से ये शेड्यूल आपको फिल करने हैं। ये मैं ITR की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो अपना एक फ्लायर आया था 3-4 पेज का, जब ITR 7 आया था। आजकल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नया शौक चढ़ा है बहुत सारे SMS फ्लायर्स भेजने का, लाइक ए बिजनेसमैन। जैसे हमें तो मार्केटिंग अलाउड है नहीं, बट आई थिंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अगर आज ब्रांडिंग का अवार्ड दिया जाए तो आई थिंक दे विल बी द नंबर 1 इन दैट। क्योंकि आज हमारा क्लाइंट हमें ज्यादा फोन करता है, सर मेरी रिटर्न नहीं गई, फाइल कर दो। जो हम किया करते थे तो हमारा बहुत सारा काम जो है आज, लेकिन ये अलग बात है जिसकी फाइल हो जाती है उस बेचारे को भी मैसेज जा रहा होता है तो उसके भी फोन सुनने पड़ते हैं, सर कर दी है, सर मान जाओ प्लीज। राजेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए राजेश। नहीं सर, एग्री विद यू, फुली एग्री सर। हाँ, तो बेसिकली क्या है, मेरे क्लाइंट की मैंने 1.5 महीना पहले 3CB फाइल कर दिया, उसको कल ईमेल आई है फाइल योर 3CB एंड लास्ट डेट इज 15 फरवरी। वो लिटरली उसको मुझे एक्नॉलेजमेंट भेजनी पड़ी, सर कर दिया, मान जाओ, रिटर्न फाइल हो गई। सो थोड़ा सा एडमेंट था कि नहीं आप लगता है कुछ गलती हुई, आपके ऑफिस ने किया नहीं, कहीं ध्यान से सर, ये तो बड़ी क्यों आया। ये बड़ी खुशी की बात है कि सर ऐसे भी अभी क्लाइंट मौजूद हैं जो कि चिंता करते हैं। हाँ है सर, बचे पुराने वाले हैं सर, इज 80 years old, बिजनेस करता है, इज अ गुड पे मास्टर। चलिए साहब, सबसे पहला इसके अंदर से दिया इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी क्लेमिंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 13 है। तो शेड्यूल LA जो है वो फाइल करना जरूरी है। मैं आपको एक कोशिश करता हूं, अगर एक रिटर्न खोल पाऊं तो मैं आई थिंक फाइंड सम, मेरे पास है यहाँ, these are instructions, यस, ये देखिए, ये है हमारी ITR 7। मैं ये अलग से खोल रहा हूं, मैं अभी बंद कर दूंगा इसको। ये बेसिकली थोड़ा सा जस्ट अंडरस्टैंड करने के लिए बेसिक बैकग्राउंड पे है, क्योंकि मैं सच्चाई बताऊं, मैं थोड़ा सा ये अपने आप को आगे रख के चल रहा था कि मैंने ये ITR 7, क्योंकि जब से हम लोग कंप्यूटर पे काम करने लगे, हम फॉर्म को तो देखते नहीं, पहले तो हम पढ़ा करते थे पूरा, जब आता था तो इंस्ट्रक्शन देखते थे, स्टेशनरी आती थी। सो अब ये बेसिकली नोटिफाइड जो फॉर्म है वो वाला है, जो अभी दिखता नहीं, सिर्फ पोर्टल पे रहता है बस खाली, क्योंकि हम तो सेक्शन वाइज फिल करते जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ आप देखेंगे, सबसे पहले यहाँ मैं साथ साथ आपको कुछ एरर्स बताना चाह रहा हूं जो जनरली होती है। इसका पहला आप कॉलम देखेंगे, मैं नाम पता मैंने छोड़ दिया ऊपर का, whether any project institution be run by the assessee, if yes then please furnish the details। यहां पे अगर हम बात करें तो ये प्रोजेक्ट इंस्टीट्यूशन की उसकी बात कर रहा है जो स्कूल्स या हॉस्पिटल्स ट्रस्ट चला रहे हैं।
सो आगे चल के आप देखेंगे कि ये इसके ऊपर ये भी मांग रहा है कि उस स्कूल से या आपको हॉस्पिटल से रेवेन्यू कितना आया है, जो अभी तक नहीं मांगा जाता था, ये सारा इसके अंदर आ गया है। मैं कुछ केसेस मैंने ट्रस्ट के ऐसे भी किए जिसमें वो कहते हैं जी हम ट्रस्ट की तो बैलेंस शीट बनाते ही नहीं, हम तो खाली स्कूल वाली है उसी को फाइल करते हैं, तो उनके कॉर्पस वॉर्पस की बैलेंस शीट वो बना नहीं रहे थे। अब ये सारी कंसोलिडेट होगी इसके अंदर, आप उसको अलग नहीं रख सकते। वो भी फंड एक्चुअली तो रिटर्न ट्रस्ट की फाइल हो रही है, ना कि स्कूल की फाइल हो रही है। स्कूल के पास 12 थोड़ी है, 12 तो आपके ट्रस्ट के पास है, ट्रस्ट उस स्कूल को रन कर रहा है। तो बेसिकली ट्रस्ट जो है वो अपने रेवेन्यू में सारे रेवेन्यूज ऐड करेगा जितनी भी तरह की इंस्टीट्यूशंस को चलाता है, जितने प्रोजेक्ट्स को चलाता है। एवरी एनजीओ, एवरी ट्रस्ट रन्स ए प्रोजेक्ट। कोई हो ही नहीं सकता प्रोजेक्ट रन ना कर रहे, क्योंकि आप एजुकेशन पे कर रहे हैं। पीपल से सर हमारा तो प्रोजेक्ट है ही नहीं। इफ यू डोंट हैव ए प्रोजेक्ट देन यू आर नॉट रनिंग ए ट्रस्ट, फिर तो डॉर्मेंट है, बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा। फिर आप पूरे साल में जो कंट्रीब्यूशन ला रहे हैं उसका एप्लीकेशन कहां लेके जा रहे हैं आप? यू आर स्पेंडिंग ऑन समथिंग। सो ये यहां पे आपको सबको देना है, नेचर ऑफ प्रोजेक्ट क्या है और उसका नेचर ऑफ एक्टिविटी क्या है और क्लासिफिकेशन क्या है। देन सेकेंड पार्ट इसका है रजिस्ट्रेशन या अप्रूवल्स देने हैं आपको। ये मैंडेटरी है सर, रजिस्टर जो है आपको देना है यहाँ पे। सेक्शन अंडर विच रजिस्टर्ड और अप्रूव्ड, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अप्रूवल नोटिफिकेशन नंबर, किसने अप्रूव किया, ये अंडर इनकम टैक्स एक्ट की बात कर रहा है अभी। सेकेंड क्लॉज में आगे जाकर के कह रहा है अंडर लॉ एनी लॉ अदर देन इनकम टैक्स, तो वहां पे बाकी भी सब आ जाएंगे। एफसीआरए वगैरह स्पेसिफिकली मांग रहा है, तो यहाँ पे आपकी जितनी भी तरह की रजिस्ट्रेशन है, लॉ अंडर विच रजिस्टर्ड, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अप्रूवल नंबर एंड अप्रूविंग अथॉरिटी, दिस इज टू बी डन। लास्ट ईयर जो ज्यादातर डिमांड्स आई थी सर वो इस वजह से आई थी कि हमने 12 तो डाला, लेकिन ये कॉलम भरा नहीं कि मेरे पास 12 के अंदर रजिस्ट्रेशन है और कब तक है, कैसे है। वी डिडंट फिल 143 1A ने वहां से पिक करके हमें अनरजिस्टर्ड ट्रीट कर दिया और पूरी की पूरी डिमांड्स क्रिएट हो गई। ह्यूज नंबर ऑफ केसेस आर देयर जिसके अंदर डिमांड्स है, और यही गलती है ज्यादातर उसके अंदर कि आपने 12A ATG की डिटेल ही नहीं भरी। तो वंस यू आप क्लेम कर रहे हैं सेक्शन 12 का रिबेट, 11 का रिबेट, जब 11 का रिबेट मिलेगा ही तब जब आप 12 में रजिस्टर्ड होंगे। 12 में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है जो अब 12A भी हो जाएगा, अभी 12AA की बात कर रहे हैं। तो अभी जैसे जैसे होता जाएगा, नाउ इट इज एनी अदर लॉ। नाउ ये बात करता है उसके बाद रिटर्न फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(1)(4). 1 is on or before due date, 4 is after due date, then revised return modified। आगे चल के मैं आऊंगा कि बिफोर ड्यू डेट फाइल करनी ट्रस्ट की रिटर्न कितनी ज्यादा जरूरी है कि आप ये रिस्क ही नहीं ले सकते। देन कम्स रिटर्न फर्निश्ड अंडर सेक्शन 139(4)(A), 4B, 4C, 4D एंड अदर्स। अगर आप रिवाइज कर रहे हैं तो आपको ओरिजिनल का आपको यहां देना है, रिसीट नंबर, ओरिजिनल रिटर्न का फाइल कीजिए, डेट फाइल कीजिए, रेजिडेंशियल स्टेटस आपका आएगा यहाँ। देन रिप्रेजेंटेटिव असेसी में फाइल कर रहे हैं तो वो यहाँ आएगा। 1991 मैंने इंटेंशनली छोड़ दिया। इफ ट्रस्ट इज ए पार्टनर इन एनी फर्म, हालांकि वो सेक्शन 215 में एक लिमिट तक जो बिजनेस कर सकते हैं उसी के लिए करेगा यहाँ पे। देन ट्रस्ट के पास यस इक्विटी शेयर्स हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। तो अगर कोई ऐसे कोई आया हुआ है कहीं से पुराने तो आप डालिए यहाँ पे। वेयर इन एनी ऑफ द प्रोजेक्ट ऑब्लिक इंस्टीट्यूशंस रन बाय यू, one of the charitable purposes is advancement of any other object of general utility। जब हम बात करते हैं क्लॉज नंबर सब क्लॉज 6 की, 215 के सब क्लॉज 6, advancement of any other object, then you have to go for this, that you have to mention 215 में कितना है, कितनी है, परसेंटेज कितना है, आप निकाल करके देना है। देन एनुअल रिसीट जो मैं ऊपर कह रहा था, देखिए यहां आ गया, नेम ऑफ द प्रोजेक्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन, अमाउंट ऑफ एग्रीगेट एनुअल रिसीट्स फ्रॉम सच इंस्टीट्यूशंस। बात कर रहा है ए और बी आपके, अगर जनरल एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी है तो हम सब समझ रहे हैं कि बेसिकली वो 5% पे लाना चाह रहा है कि उससे ज्यादा तो नहीं है। तो अल्टीमेटली टोटल एनुअल रिसीट्स ले लिया, मेरे से परसेंटेज निकाल ली, देन मैच करके क्रॉस चेक होगा। वेदर अप्रूवल ऑब्टेन्ड अंडर सेक्शन 80G, वी हैव टू से यस नो, अप्रूवल नंबर, देन दिस इज ऑल, डेट ऑफ चेंज। नाउ इट इज हियर, व्हेन is there any change in objects oblique activities, yes or no? If there is any change you have to mention, and date of such change, and application for amendment has been filed or not, and whether that has been granted or not. Then there is a FCRA, whether registered under FCRA. When I was deliberating on FCRA, I told everything that
नाउ दे आर मैचिंग, दे आर, कुछ इस तरह की कोशिश हो रही है पीछे पीछे कि सारे के सारे नीति आयोग में जाकर के ये सारा इकट्ठा हो जाए एक ही जगह पे, पता लगे कौन ट्रस्ट क्या कर रहा है। ऐसा नहीं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अपनी रेवेन्यूज अलग हैं, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन इधर अलग हैं उधर अलग हैं, तो बेसिकली कहीं ना कहीं ये मैच करने की कोशिश हो रही है, उसको क्रॉस चेक की है तो मैचिंग होगा। जो ठीक काम कर रहे हैं उनको वैसे ही कोई चिंता। देन कम्स, अगर एमएमआर पे आपको कोई टैक्स लगना है मार्जिनल रेट का, तो आप कर दीजिए 13(1)(c) और 13(1)(d) की वजह से, रीजन से, तो आप देन इज आस्किंग फॉर आर यू लायबल फॉर ऑडिट अंडर सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट, सर्टनली यस है, बिकॉज अनऑडिटेड तो नहीं, तो ऑडिट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे ऑडिटर, ये सब जब हम सॉफ्टवेयर में फिल करते हैं तो अल्टीमेटली यही फॉर्म फिल होता है जाकर के बैकएंड पे, तो इसको पता होगा तो हमें पता कि हम क्यों भर रहे हैं इसको। Now he's asking for another thing basically, which is very important here, which we generally miss. If liable to audit any act other than income tax act, mention the act, section and date of furnishing the audit report. Now if I talk about political party, तो उसके लिए income tax में audit नहीं होता, उसमें आपका Representative People Act के अंदर जाकर के होता है, तो बेसिकली उस वजह से यहाँ पूछा कि अगर ऑडिट है वहां पे भी तो वो आ जाए उसका। उसके बाद कह रहा है कि particulars of person who were members in the AOP as on 31st day of March, ये वेंचर कैपिटल फंड और इन्वेस्टमेंट फंड की बात कर रहा है, उसके लिए है। शेड्यूल्स, यहाँ पे अब शेड्यूल स्टार्ट हो गए, ये जो मैंने जहां से लाके शुरू किया था, ये शेड्यूल आई पे आ गया हूं, जो मैंने आपसे स्ट्रक्चर्ड स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि इसका 7 का हमारा स्ट्रक्चर क्या है, वो यहां से अब शुरू हो जाता है। फर्स्ट इज शेड्यूल आई, डिटेल्स ऑफ अपकम अमाउंट्स accumulated oblique set apart within the meaning of section 11(2) or in terms of third provision to 1023(c). So जो accumulate किए थे हमने 11(2) में करके, उनके बारे में यहाँ के 14-15 में कितना किया था, पर्पस क्या था, अप्लाई कितना, बिगिनिंग कितना हो चुका है, इस साल कितना कर दिया, 11(5) में कितना रखा है आपने, उसके बाद अप्लाई इस साल कितना किया और बैलेंस कितना है, एंड डीम टू बी इनकम, जिसका पीरियड खत्म हो गया या आप नहीं कर पाए, वो यहां इनकम दे दीजिए 11(3) के अंदर। तो फॉर एवरी ईयर दे आर मेकिंग अ टेबल, एंड बिलीव मी ये सर डिजिटल इरा में है, जो यहां चला जाएगा दिस विल बी फाइनल। नाउ यू कैन नॉट अमेंड इट, आप नहीं कह सकते कि सर ये नहीं ये फिगर थी। सो ये फिगर्स इतने ढंग से फिल हो जाएं कि अपने आप आए, हालांकि इसके बाद अपने आप आनी शुरू हो गई है, ये प्रीफिल का इनका आएगा पीरियड तो अपने आप आती चली जाएगी। 2021 में आप देखेंगे उसने खुद ही ग्रे कर दिया, क्योंकि जब आप एक्यूमुलेट कर रहे हैं तो आप अप्लाई नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब। तो ये नेक्स्ट ईयर ऐसे एक एक स्लैब आगे जाता चला जाएगा और ये पीरियड दे जाएगा। देन कम्स शेड्यूल जे। शेड्यूल जे बात करता है स्टेटमेंट शोइंग द इन्वेस्ट फंड्स एंड इन्वेस्टमेंट्स एज ऑन द डे ऑफ लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। कॉर्पस का बैलेंस कितना, नॉन कॉर्पस फंड का कितना है। एक्चुअली कोहली साहब हुआ क्या है कि जैसे हम लोगों ने एक्सेल सीखा ना अपने ऑफिस में, और अब हम आज सब टेबल्स बना के बैठे हैं कि ये काम करेगा ये करेगा, डिपार्टमेंट ने वो सारा काम हमसे करा के अपना एक्सेल में लाके और सिर्फ डाटा एनालिटिक्स शुरू कर दिया। अल्टीमेटली अब कुछ नहीं बचा, इट्स अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस। लीगल का सब्जेक्ट अलग है, बट एटलीस्ट जो नंबर्स हैं, नंबर्स आर नाउ मैचिंग विद ईच अदर, बेसिकली फिल्टर्ड है सारे का सारा। whatever figures we are putting, this is going to a particular section and it is automatically वो CPC जो है इसको प्रोसेस कर रहा है और उसी के बेसिस पे 143(1) हमें निकाल के दे देता है। तो इफ वी मेक ए एरर, अगर हम कहीं एरर करते हैं तो उसका इंपैक्ट उनको नहीं पता सर, वहां मशीन काम कर रही है, ह्यूमन बीइंग नहीं कर रहा, ये मान के चलते हैं। जब ह्यूमन एप्लीकेशन का इंटरवेंशन था तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी, क्योंकि वो चेक भी कर लेता था यार गलती हो गई होगी इससे। नाउ वट एवर वी डू दैट इज फाइनल। और हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग डिपेंडेंट्स हैं कि हमारे स्टाफ के साथ कि कैसे वो करता है, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल गोइंग फाइनली दिस रिटर्न्स जब जाती हैं, एटलीस्ट एक प्रीव्यू अगर देख लें उसका, तो ये मिस्टेक्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं या एक स्टैंडर्डाइज्ड हो जाए भी इस केस में जरा ध्यान से ये चीज करनी है। तो ये सब आप कॉर्पस फंड का बैलेंस चला गया, नॉन कॉर्पस का चला गया, इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट्स 11(5) में कहां पड़े हैं आपको याद नहीं होगी डेट ऑफ मैच्योरिटी सर, लेकिन इनकम टैक्स का फॉर्म आपको बता देगा अगली बार। मुझे लगता है एक SMS ये भी आया करेगा कि आपकी FDR मैच्योर हो रही है इस डेट को,
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स के पैसे लेने हैं और चले गए, थैंक यू वेरी मच, आपकी जरूरत ही नहीं है। सर, तो बिल्कुल बहुत कुछ इतना रिलेट होने ठीक कह रहे हो। जितनी AISTS में इंफॉर्मेशन आ रही है सब पॉपुलेट करके बता देंगे, सॉफ्टवेयर वही भर देगी सारी। मुझे लगता है हम AIS से ही अपनी जिंदगी चलाया करेंगे आने वाले। So basically this is date of investment, maturity, amount of investment and maturity amount. Everything has to be filled out. मतलब nothing they are keeping it out. Date of maturity आप दीजिए, मतलब FDR has to be in your hands. You cannot survive without feeding it. So basically investment held at any time during the previous year in any concern in which persons refer to 13(3) जो हमने बात की थी कि you cannot give to a concern in which you have a substantial interest. तो जितना भी किया हुआ है वो डिटेल दे दीजिए। अदर इन्वेस्टमेंट्स एज ऑन द डेट ऑफ द प्रीवियस ईयर, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन डोनेशंस रिसीव्ड इन काइंड, नाउ इज टॉकिंग अबाउट नॉट इन कंसिडरेशन, इज टॉकिंग अबाउट इन काइंड, कन्वर्टेड इनटू इन्वेस्टमेंट बट नॉट कन्वर्टेड इनटू इन्वेस्टमेंट्स। 11(5) में आपके पास कहीं से कुछ गोल्ड आया है, कहीं से कुछ और चीजें आई हैं जिसको कन्वर्ट नहीं किया गया 11(5) में, उसकी डिटेल यहां दे दीजिए। तो उनका किया क्या बता दीजिए। तो जितने भी रिलीजियस ट्रस्ट हैं हमारे जिनके पास आती हैं इस तरह की, दे हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दिस। नाउ स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर रिगार्डिंग द ऑथर्स एंड फाउंडर्स, ट्रस्टीज, मैनेजर्स। नाउ फर्स्ट कॉलम इज ऑथर्स एंड फाउंडर सेटलर्स इफ अलाइव। अब हम लोगों के लिए समस्या ये आती है कि हम तो कॉपी पेस्ट करे जा रहे हैं पीछे से, कई बार तो पता भी नहीं होता कि वो फाउंडर जो है, ट्रस्ट तो कितनी बार उसके ट्रस्टीज चेंज हो चुके। अब ये फाउंडर्स की डिटेल चाहिए जिन्होंने ट्रस्ट बनाया था 1937 में, 1942 में। अब ये वो सब यहां आएंगे। अब ये मे बी शायद 12A भी जाने के बाद ये ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाए, क्योंकि वहां ये इंफॉर्मेशन जाएगी तो वहां से आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज एवरी ईयर ये सब फिल करना तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। दिस इज नॉट ए जॉब टू बी डन विच कैन बी डन इन 2 or 3 hours. Then he's talking about trustees और मैनेजर्स जो अभी हैं। आधार नंबर में थैंकफुली दे हैव सेड इफ अवेलेबल, पर पैन ले लिया है तो पैन से आधार लिंक जाए, उनको ऑटोमेटिकली मिल ही जाएगा। नथिंग हमारे लिए कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि जब आप पैन दे रहे हैं और पैन से आधार लिंक्ड है तो डिपार्टमेंट हैज दैट इंफॉर्मेशन। तो सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन टू द ट्रस्ट 13(3)(b) की बात। देन एनी अदर फाउंडर ट्रस्टी और उनके जो सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर्स हैं, नेम्स ऑफ रिलेटिव्स ऑफ ऑथर्स एंड सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर्स। मतलब आप देखिए रिलेटिव्स ऑफ ऑथर्स, फाउंडर्स, ट्रस्टीज, मैनेजर्स एंड सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर्स। मतलब वो कुछ भी नहीं है, इस सिंपली 1 करोड़ का डोनेशन आया जिसमें 70 लाख रुपए एक आदमी ने दिया, तो उसकी भी सारी डिटेल। Also the names of the members of the family and their relatives. This all detail has to be given here. This is Schedule LA for which I was talking about, Schedule LA. It talks about books of accounts maintained है या नहीं है, voluntary contribution 20,000 से ज्यादा मिला या नहीं मिला, इलेक्टोरल बॉन्ड्स 20,000 से ज्यादा के हैं या नहीं है, किसने दिए, उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया नहीं किया। लिस्ट नहीं मांगी है सर, अपनी बारी आई तो लिस्ट नहीं चाहिए सर, ऊपर सारी चाहिए थी, सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर का चाहिए, पर जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात आई तो कह रहे सर लिस्ट बना ली है ना, तो ठीक है जी, थैंक यू। नाउ अकाउंट्स हैव बीन ऑडिटेड और नॉट, एंड देन ऑडिटर्स की कंप्लीट डिटेल, एंड वेदर एनी डोनेशन एक्सीडिंग 2,000 रुपीज वर रिसीव्ड अदर देन बाय एन अकाउंट पे चेक्स। कैश की बात कर रहा हूं तो अलाउड कहीं भी नहीं है। तो उसके बाद रिपोर्ट अंडर सेक्शन 29C हैज बीन सबमिटेड। तो येस और नो में आंसर है, अगर येस है तो बता दीजिए। इलेक्टोरल ट्रस्ट का इसी तरह से है, मैं ज्यादा टाइम इस पे नहीं लगाऊंगा। ये हम आ जाते हैं वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस पे जो हमारे लिए एप्लीकेबल है। तो ज्यादातर हम ये शेड्यूल VC फाइल करते हैं क्योंकि हमारे जो ट्रस्ट है उनको वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन आता है। देन देयर आर कॉर्पस फंड डोनेशन, ग्रांट रिसीव्ड फ्रॉम कंपनीज अंडर CSR, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, फॉरेन कंट्रीब्यूशंस की बात कर रहा है कितना आया तो कि FCRA से कवर हो जाए वो सारा। अनोनिमस डोनेशंस, वी ऑल नो कि अनोनिमस डोनेशंस टैक्स होती हैं 30% पे, तो 1 लाख या 5% को छोड़ करके बाकी जो है। देन शेड्यूल AI है, उसके बाद ये बेसिकली रिसीट्स फ्रॉम मेन ऑब्जेक्ट्स, इंसिडेंट। तो आपके पास जो रिसीट्स हैं बेसिकली यू हैव टू स्प्लिट इट अप ऑल अंडर
वेरियस हेड्स ऑफ इनकम, क्योंकि यहाँ हम डिफरेंट, मैंने कहा कि आपको पांचों हेड्स हमारे पे अप्लाई यहाँ नहीं होते, तो पांचों के पांचों यहीं आएंगे। यहाँ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं आती, रेंट आएगा, कमीशन आएगा, डिविडेंड आएगा, इंटरेस्ट आएगा, ये सब लेने के बाद देन कम्स एक्सपेंडिचर की बात करता है। सो दिस इज योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जहां पे रेंट्स कितना पे किया, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, ये सब हेड्स जो है डिफाइंड है ऑलरेडी, हम इस हिसाब से अपना क्रिएट करके चलते हैं इसके साथ। पेड टू चैरिटेबल, तो ये बेसिकली इस तरह से ये फॉर्म का स्ट्रक्चर है इसका। दिस आई वांटेड टू डिस्कस, क्योंकि हम जनरली, मैंने कहा ना, अब हमने देखना बंद कर दिया, तो वी आर नॉट लुकिंग एट। नाउ कमिंग बैक टू माय ओरिजिनल पीपीटी, या ये हमने डिस्कस कर लिए हैं ये आईटीआर के जो पेजेस हैं एग्जैक्टली, तो आई एम जस्ट रशिंग थ्रू नेक्स्ट पेजेस पे। ये शेड्यूल्स हमने कर लिया है, ये ऑथर्स हो गया, यस। चलिए अब हम चल रहे हैं डीम्ड एप्लीकेशंस पे। हम लोग बात कर रहे थे कि बीच में कुछ ऐसी एक सिचुएशन आई थी कि जो तो 85% स्पेंड हो गया वो तो ठीक है, अब जो नहीं हुआ है, यस, अब जो नहीं हुआ है वहां पे कुछ हमें डीमिंग प्रोविजन भी दिए हुए हैं, जिसके बारे में मैं आपसे यहां थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूं। डीमिंग प्रोविजन में यह है कि एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट पीछे अमेंडमेंट आई थी कि अगर मुझे सपोज एफडीआर का इंटरेस्ट है, तो दैट इंटरेस्ट इज माय इनकम, बट दैट इनकम हैज नॉट बीन रिसीव्ड बाय मी, दैट हैज नॉट कम टू माय बैंक अकाउंट, वंस देन दैट हैज नॉट कम टू मी। और इसी तरह के और भी कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं कि मुझे रेंटल मिला लेकिन रेंट रिसीव नहीं हुआ, इवन कंट्रीब्यूशन भी मिला बट ऑनेस्टली मेरे बैंक में नहीं आया, या मुझे पैसा नहीं मिला, किसी ने कमिट कर दिया, या कुछ इस तरह की बात हुई। तो बेसिकली क्या है उस केस में क्या होगा, मैं उसका 85% अप्लाई कैसे करूं, मेरे पास तो पैसा है नहीं। सो बेसिकली देयर इज अ फॉर्म 9A which was inserted. One has to file to the income tax department. The condition of filing is that this form has to be filed before filing of due date of return as well as before filing of tax return. तो अगर मैंने ITR 7 फाइल कर दी, मुझे अपनी रिटर्न फाइल करने से पहले फाइल करना है। ड्यू डेट ऑफ रिटर्न तो है ही है, लेकिन अगर मेरी रिटर्न फाइल हो चुकी है, ड्यू डेट बची हुई है, मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी सर। मुझे 9A फाइल करना है, और उसमें अगर आप 9A का फॉर्मेट देखें तो मैंने इंटेंशनली डालने की कोशिश की यहां पे। इट टॉक्स अबाउट अमाउंट ऑफ इनकम डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी सो एंड सो प्रीवियस ईयर में मिली, और एक्चुअली अप्लाई बाद में हुई है जाती, नेक्स्ट ईयर में जाके होगी, क्योंकि मेरे पास पैसा आया ही नहीं कहीं से। सो दिस 9A इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन एक्सरसाइज दिस ऑप्शन 11(1)(2) of Income Tax Act, which says about this amount to be deemed to be the income applied for charitable or religious purposes during the previous year for the reasons in B below. जब मैं B में जाता हूं, whether the income was not received during the previous year, if yes, amount of income that was not received. तो जितना पैसा मुझे नहीं मिला उसका 85% मुझे करने की अभी जरूरत नहीं है, पर नेक्स्ट ईयर जब मैं कर दूंगा तो मुझे नेक्स्ट ईयर दोबारा बेनिफिट नहीं मिलेगा सर उसका, क्योंकि मैं एक बार ले चुका हूं डीमिंग प्रोविजन। सो ये शॉर्टफॉल है, इस वजह से मेरा 85 से कम होगा। तो ये एक 9 का जो है एक मुझे दिखा था, तो आई थॉट कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है ये। हालांकि जनरली यूज ये कम करते हैं लोग इसको यूज, क्योंकि ज्यादातर जो है वो ये रहता है कि जितना मेरा आ गया उसका 85% कैसे बनाया जाए। तो गिरीश आहूजा जी से हमने बहुत कुछ सीखा कैसे बनता है, तो उसको आगे चलते हैं। Then there is another form, that is form 10. ये 9A जो है, it is only for 1 year. This is not for 5 years. Then there is a form 10 which basically talk about accumulation for a specific project. मैंने प्लान किया कि हॉस्पिटल बनाना है, उसकी बड़ी बिल्डिंग बनानी है। जब हॉस्पिटल की बड़ी बिल्डिंग बनानी है तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो मैं आज अगर 1 करोड़ मेरे पास आ गया और मैंने शुरू कर दिया, मेरा बजट ही 20 करोड़ रुपए का, तो अब क्या किया जाए, अगर मैं 1 करोड़ से स्टार्ट कर देता हूँ बार बार रुक जाऊंगा। तो गवर्नमेंट हैज गिवन मी ए प्रोविजन कि ओके आप इसको रख लीजिए, 5 इयर्स तक आप इसको अक्यूमुलेट कर लीजिए, उसके बाद आप विद इन 5 इयर्स आप इसको लेकर के कर लीजिए।
तो but I have to file this form 10 and there is I faced practically in one case, it has to be filed every year. This is not like this कि मैंने एक बार अपना प्रोजेक्ट डिक्लेयर कर दिया वो मान जाता है. डिपार्टमेंट में सब तरह के लोग हैं. वो एक केस में हम लोग अपील में हैं इसी पे, कहते नहीं, यू हैव टू फाइल इट एवरी ईयर, व्हाई डू यू हैव नॉट फाइल्ड? सो दिस हैज टू बी फाइल्ड. दिस ईयर डीमिंग प्रोविजन भी है इसके अंदर 11(2) के अंदर जाके, जो ये कहता है कि डीम्ड टू बी अप्लाई. भले ही पैसा आया नहीं, खर्च हुआ नहीं, आप नेक्स्ट ईयर स्पेंड करिए और विद इन 5 years कीजिए. But be careful. My motive of putting this slide in this PPT was to make my members, my friends aware, who are already very intelligent and they always become vigilant on this, that they file this form if they are exercising this option before filing of their ITR. Before filing of ITR. So this is deeming provision. This is form 9. This is 10. I have put it here because मैंने कहा ना, अब हम एक्चुअली स्टेशनरी ज्यादा देखते नहीं है, तो कभी कभी देखने में अच्छी लगती तो लगता है कहीं टेस्ट कर दें इसको. ये सर कुछ टेक्निकल इश्यूज थे जो कल डिपार्टमेंट ने, मैंने कहा था ईमेल आई थी, तो ये मैंने उनके ईमेल से लिया है सर. एंड बिलीव मी, आई ट्राइड फॉर one or two cases yesterday and it worked. So एक तो वो कह रहा है कि अगर इनवैलिड ARN शो कर रहा है, इनवैलिड पीक, ये मैसेज अगर आपको मिलता है तो आप ये कीजिए, लॉग इन कीजिए, माई प्रोफाइल पे जाइए, प्रोफाइल को कीजिए. एनीवे, दिस इज सिंपल, एनीबॉडी कैन यूज इट. कॉन्टेक्ट सेक्शन पे जाके एक बार अपडेट कर दीजिए, ड्रॉप डाउन से सेव कर. मतलब बेसिकली कोहली साहब और अग्रवाल साहब हंसेंगे फिर मेरी बात पे. हम बजाज स्कूटर चलाने वाले लोग हैं, जब स्टार्ट नहीं होता तो हम टेढ़ा करके किक मार लेते थे. तो एग्जैक्टली मुझे लगता है, मैं कल भी हंस रहा था, मैं क्या, पावा साहब भी आ गए. पावा जी याद होगा शायद बजाज स्कूटर ऐसे ही स्टार्ट होता था ना अपना. बिल्कुल ठीक बात है सर. तो ये एग्जैक्टली वही है. वो कह रहे हैं कुछ नहीं हो रहा, तुम दोबारा प्रोफाइल खोलो, दोबारा से भर के सेव कर लो यार, हो जाएगा, छोड़ो, पर तक मत करो हमें भी. बार बार आप टेक्निकल कहते हो तो रहा नहीं. तो अल्टीमेटली यही है. एक प्रॉब्लम उन्होंने ये रिजॉल्व की है कल. दूसरी ये CA के लॉगिन में की है कि वहां पर 10 भी दिखाई नहीं देता था, तो वहां पे भी उन्होंने जाके कहा कि आप अपना कॉन्टेक्ट कर लो. तो हमने एक 10 भी कल किया तो हो गया, जो बहुत टाइम से पेंडिंग पड़ा था, 10-15 दिन से हो नहीं रहा था. तो देन आफ्टर दैट इट वर्कड. और ये फॉर्म एक्सेप्ट करने में भी जो दिक्कत आ रही थी उसका भी उन्होंने एक सोल्यूशन दिया है कि CA जो है डिलीट कर दे और उधर से फ्रेश फॉर्म फाइल कीजिए. फिर वही कहानी कि आप अपने कंप्यूटर को 2 बार हिलाओ, 2 बार कीबोर्ड को यस वो नो करो, चल पड़ेगा. तो उसको बोलिए, कह रहा जी CA को बोलो फ्रेश फॉर्म फाइल करे, मतलब 10 भी दोबारा फाइल कर दे, उसको डिलीट कर दीजिए. चलिए, ये था सर ITR 7 तक के मेरे जो माइंड में इश्यूज आए, जो ITR 7 पे इश्यूज आए. बेसिकली उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा यहाँ डालने की कोशिश की. अगर आप चाहें तो हम यहाँ ब्रेक ले सकते हैं, या आप चाहें तो एंड में एक ही बार ले लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि मैं अमेंडमेंट्स को टच करना चाह रहा था कि जो हमारी ड्यूल रजिस्ट्रेशन पे है, 12AB का रजिस्ट्रेशन हमें अभी करना है, तो बेसिकली उसकी तरफ जाना चाह रहा हूं. तो चॉइस इज योर. राजेश जी कैसे कहते हो, कंटिन्यू? नहीं सर, अमेंडमेंट ले लो सर पहले. ओके राजेश जी, थैंक यू, जैसा आप हुक्म करें प्लीज. चलिए, अमेंडमेंट के अंदर सबसे मेजर चेंज है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का. बेसिकली उसके अंदर सेक्शन 12AB इन्होंने कर दिया, उसको 12AA से रजिस्ट्रेशन जो होगी वो तो होगी 12 में ही. सो बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव क्या है उसके पीछे, मतलब क्यों की है अमेंडमेंट, अगर हम बात करें उसकी, तो सबसे पहले तो मुझे जो सबसे पहले लगता है वो कारण ये कि जैसे हमारे पास पेपर्स नहीं है ना, हमें नहीं पता हमारा कौन सा फाउंडर अलाइव है और कौन सा नहीं है, तो ऐसे ही डिपार्टमेंट के पास भी कुछ पेपर्स मुझे लगता है ही. मुझे लगता है इनका भी रिकॉर्ड मिसप्लेस्ड है और ये भी चाह रहे हैं कि आप ही अपडेट कर दो. तो जो आप अपडेट कर देंगे हम उससे आगे का चल पड़ेंगे, पीछे का हम भी नहीं देख रहे. जैसे किसी भी झगड़े में एंड में यही होता है, यार पुरानी कोई बात नहीं करेंगे अब. तो पुराना कुछ नहीं, आप फाइल करिए विद डॉक्यूमेंट्री जो है. सो एटलीस्ट आप तो अपने लिए ढूंढ ही लाएंगे, हम कहाँ से लाए, क्योंकि डिपार्टमेंट का भी हाल हम सबने देखा, कुछ है नहीं वहां पे. डॉक्यूमेंट्स जाओ तो पुराने तो आप भूल ही जाओ. कोई पुरानी रिटर्न की कॉपी अगर आज ढूंढनी हो 2009-10 की किसी को ढूंढनी पड़ जाए तो हम सब सोच सकते हैं कि वो ख्वाबों जैसा है कि कैसे मिलेगी वो. सो बेसिकली उन्होंने पर्पस दिया इसका, नीड इंप्रूवमेंट विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, के टेक्नोलॉजी का फायदा उठाएं. जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं रजिस्ट्रेशन अप्रूवल नोटिफिकेशंस में, एक्टिविटीज के स्टार्टिंग ऑफ एक्टिविटीज, मेजर इशू ये था जो डिस्प्यूट मेजर रहता है
कि जो एक्टिविटीज एग और हेन स्टोरी थी हमारी, हमेशा सीआईटी कहते थे तुम्हारी कोई एक्टिविटी है मैं रजिस्ट्रेशन ग्रांट नहीं कर रहा, हम कहते थे साहब रजिस्ट्रेशन दो तो एक्टिविटी करें कैसे उसके बिना। तो वो फिर हम फोटो बनाया करते थे, एक जमाना वो भी था कि फोटोग्राफ बना के और बड़ी सारी साइकिलों पे हम किताबें जो है डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाते थे, और सब जो बिल थे वो सब हम वो प्रोसेस को खत्म करके उन्होंने कहा ओके ये मैकेनिकल हो गया, नाउ एक्टिविटी स्टार्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप करिए इसको। उसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक करने का मोटिव 16 डिजिट जो है यूआरएन मिलेगा आपको, न्यू और एग्जिस्टिंग दोनों को वो मिल जाएगा आपको। अभी तक जो अप्रूवल था वो इनडेफिनेट पीरियड के लिए था, उसको उन्होंने फिर से चेंज कर दिया 5 और 3 इयर्स। तो वो एग्जैक्टली हम फिर वापस वहीं आ गए जहां से कुछ साल पहले चले थे। पहले एक अमेंडमेंट थी 5 साल पहले होती थी, फिर ये उसके बाद इनडेफिनेट हो गई, फिर उसके बाद फिर वापस हम वही 5 साल पे आ गए। तो अभी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन 3 इयर्स के लिए है और जो परमानेंट रजिस्ट्रेशन है वो 5 साल का मिलेगा। सो बेसिकली ये हमारा जो है मोटिव रखा इन्होंने। और उसके बाद ये है कि कंडीशन और अप्रूवल जो है उसको कैसे ट्रैक किया जाए, और नोटिफिकेशंस जो भी आती हैं उसके साथ, कि जो एग्जम्पशन है वो जेन्युइन आदमी को मिलती रहे, ऐसा नहीं कि एक बार ले लिया और उसके बाद ही बिकम्स द बॉस। सो ऑन द लाइंस ऑफ एफसीआरए, जैसे एफसीआरए में उन्होंने किया कि रडार 360 डिग्री हमारा ऊपर रहेगा, हम आपको देखते रहेंगे, जब हमारा दिल करेगा हम कैंसिलेशन करेंगे, क्योंकि कैंसिलेशन की पावर्स भी ले ली अब सीआईटी ने, मैं आऊंगा भी उसके ऊपर। उसके बाद वो कह रहा है फॉर हैविंग ए नॉन एडवर्सरियल रेजिम एंड नॉट कंडक्टिंग रोइंग इंक्वायरीज। उनका कहना था कि हम रोज ये रोविंग इंक्वायरी ना करें, आपकी कुछ अमेंडमेंट्स है तो आप बताइए, हम आपको लेटर्स ना भेजें, कोई जरूरत नहीं हमें, तो आप अपना काम करें हम अपना काम करें। थोड़ा सा उसको ईज ऑफ डूइंग के हिसाब से, कन्वीनियंस के हिसाब से, डिजिटाइजेशन का फायदा उठाने के लिए, टेक्नोलॉजिकल का, आई थिंक दिस ऑल हैज बीन क्रिएटेड। ये जो बात मैंने बोली लास्ट वो है टू फैसिलिटेट द रजिस्ट्रेशन ऑफ द न्यू चैरिटी इंस्टीट्यूशन which is yet to start their charitable activities, yet to start, to allow them provisionally for 3 years. Okay, कर लीजिए सब। And then last but not the least, to cross check claim of donation by donor. हम सब जानते हैं कि ऑलरेडी हम लोग एक बैंगलोर का केस देख चुके, एक नॉन सीए था जिसको सीए कह के इन्होंने पोस्ट किया। इस प्रोफेशन को तो डिफॉर्म करने की कोई कोशिश छोड़ता नहीं है। तो एक नॉन सीए था जो रिटर्न्स फाइल करके 80G के क्लेम दे दिया करता था लोगों को। तो बेसिकली वो क्रॉस चेक हो जाएगा। एआई हमने देख लिया, आईएएस में सब आना शुरू हो गया है ऑलरेडी चीजें, तो उसके साथ क्रॉस चेकिंग। देन हम चलते हैं कि ग्लिम्सेस की अगर हम बात करें कि क्या बदला। पहली बात तो ये इफेक्टिव 1/4/21 से है। 12AB जो है वो रिप्लेस कर जाएगा 12AA को। एनजीओ रजिस्टर्ड प्रायर टू 1/4/21, ये 31 मार्च 22 अब डेट है फाइल करने की, पर ये 1/4/21 से अमेंडमेंट वहीं के वहीं है, वो चेंज नहीं हुए। आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन फाइल करने का टाइम बढ़ रहा है, लेकिन आपका प्रोसेस जो है वो सारा चेंज हो चुका है। उसके बाद 10-20 और सभी को जो है अभी 12AA की रजिस्ट्रेशन लेनी मैंडेटरी है। 12AB की रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। 1023C आपको ड्यूल नहीं मिलेगा, पहले 2 थे सबके पास, अब perpetuity has been withdrawn under the new scheme. Registration is required to be renewed every 5 years and concept of provisional registration. चलिए ये अब सेक्शन 11(7) जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये एक अमेंडेड है। where a trust or institution has been granted registration or has obtained registration at any time and the said registration is in force for any previous year, then nothing contained in section shall operate to exclude any income. तो आप एक तरफ लेंगे, दोनों तरफ नहीं। इनऑपरेटिव हो जाएगी सर वो रजिस्ट्रेशन, प्रोवाइडेड दैट सच रजिस्ट्रेशन शैल बिकम इनऑपरेटिव फ्रॉम द डेट ऑन विच द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन इज अप्रूव्ड, provided further that the trust or institution whose registration has become inoperative may apply to get its registration operative under section 12AB. तो अल्टीमेटली आपको इस रूट से जाना पड़ेगा to the conditions. उसके बाद आपका यह है कि आपके पास जो ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन है जो इनऑपरेटिव हो जाती हैं 11(7) के अंदर,
6 months प्रायर टू एक्सपायरी आपको अप्लाई करना पड़ेगा। सो मतलब आप बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। जैसे हम बात कर रहे थे कि डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ एफडीआर भी याद रखनी पड़ेगी, लेकिन उसके साथ साथ कब आपका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो रहा है उससे 6 महीने पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा। आपकी ड्यू डेट 6 मंथ्स पहले है, आप उस डेट को मत देखिए। तो मतलब ये मुझे कुछ कुछ वैसा दिखाई देता है जैसे हम वीजा अप्लाई करते हैं तो उस पर लिखा होता है कि योर पासपोर्ट शुड बी वैलिड फॉर 6 मंथ्स जब आप ट्रेवल कर रहे हैं, ताकि वो कंट्री में आप ऐसा ना हो कि 180 दिन से ज्यादा रह गए तो हमारे लिए मुसीबत कर दें, तो आपको वीजा ही ग्रांट नहीं करते, 6 महीने वैलिड नहीं है। तो यहाँ वो 6 महीने का कहीं से प्रोसेस वहां से उठा लिया कि आपको ग्रांट ही तभी करेंगे। टाइम पीरियड ऑफ अप्रूवल ये है, कंडीशंस चेक होंगी अब रजिस्ट्रेशन पे। एंड बिलीव मी, आपका जो रिन्यूअल है वो उस प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन से ज्यादा टफ है। पहले तो ये होता था रिन्यूअल में करना ही क्या है सर, ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, स्टैम्प मार दो, एक्सटेंड ही तो करोगे टाइम। नहीं सर, प्रॉपरली अब उसको वो भी चेक करना है कि आपने 3 साल में या 5 साल में किया क्या है, क्या आपने पिछले 5 साल का आपको वो भी हिसाब देना है। जबकि आप फर्स्ट टाइम जब अप्लाई कर रहे थे तो वो प्रोविजनल में वो कुछ नहीं देना था, आपको तो सीधा अप्लाई करना था, ट्रस्ट बना दिया, रजिस्ट्रेशन ले लीजिए, मैकेनिकल है तो बेसिक। लेकिन जब आप दूसरी बार रिन्यूअल के लिए जाते हैं 3 साल के बाद या आगे जाएंगे आप 5 साल के बाद, तो आपसे पूरा हिसाब जो है, या ITR 7 आपने देख ली पीछे, पूरी डिटेल्ड वो देनी पड़ेगी आपको। खाली आप उससे नहीं होगा कि खाली आपने डॉक्यूमेंट्स लगा दिया और उससे होगा, यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ दैट दिस हैज बीन डन। बेनिफिशियरीज जो हैं उनकी पूरी डिटेल्स जो है वो आने वाले वक्त में फाइल होंगी, क्रॉस चेक होंगी, तो वो चीजें नहीं होंगी। अगर कोई चैरिटी ऑनेस्टली कर रहा है, जेन्युइनली कर रहा है, तो बिल्कुल वो वैलिड है। लेकिन अगर कोई नहीं कर रहा है तो ही इज गोइंग टू बी इन ट्रबल, ही हैज टू बी केयरफुल। एग्जम्पशन अवेलेबल है उसके बाद असेसमेंट ईयर इमीडिएटली फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर उसको मिलेगी। ऑर्डर ऑफ अप्रूवल 6 महीने के अंदर आ जाएगा। पहली बार 3 मंथ्स का है, दूसरी बार 6 महीने का। ये ड्यूल ऑफ रजिस्ट्रेशन हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। ये थोड़ी सी टाइमलाइंस है सर, हम इस पे बात कर लेते हैं। ये एक चार्ट है पूरे का पूरा। ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन हैविंग एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन 10A में अप्लाई करेंगे, आपको विद इन 3 मंथ्स आपको अप्रूवल मिल जाएगी। ये एक्सटेंडेड डेट 31/8/21 लिखी हुई है, एक्चुअली 31 मार्च 22 हो गई है। अब 3 महीने में हमको अप्लाई करना है, 3 ही महीने में प्रिंसिपल CIT या CIT को अकॉर्डिंगली आइदर रजिस्टर करना है या रिजेक्ट करना है। उसके बाद जब हम 10AB में जाएंगे रिन्यूअल के लिए, ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AB एंड द पीरियड इज ड्यू टू एक्सपायर, तो आप 6 मंथ्स प्रायर अप्लाई करेंगे। Now we have to apply 6 months prior, and if you see the second clause, you will see that within 6 months commissioner or principal CIT has to decide. तो 6 महीने उसको इसलिए दिए गए हैं ताकि वो आपकी एक्सपायर्ड हो ना, और उससे पहले पहले वो इशू कर दे आपको। तो अल्टीमेटली वो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो एक्सपायर हो ही ना, तो आपसे अभी तक का प्रोसेस ये था, हम अप्लाई करते थे फिर वो पेंडिंग पड़े रहते। नाउ ही इज सेइंग कि आपको इसके अंदर टाइम वेस्ट ना हो आपका। देन कम्स थर्ड, ये प्रोविजनल की बात करता है, तो वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, उसके साथ कोई डिफरेंस नहीं है। जब प्रोविजनली से आप उस पे आएंगे ओरिजिनल पे, अगेन सेम कंडीशन है कि आप प्रोविजनली रजिस्टर्ड है थे, 6 महीने पहले अप्लाई कीजिए, मतलब 2.5 साल के अंदर अप्लाई कीजिए, 2.5 years पे। देन अकॉर्डिंगली 6 मंथ्स के अंदर आपको प्रिंसिपल CIT या CIT रजिस्ट्रेशन देगा। इनऑपरेटिव हो गए आप ड्यू टू फर्स्ट प्रोविजो ऑफ 11/7 which we talked earlier. Now again 6 months prior to the commencement of the assessment year, 6 months of the commencement of the assessment year from which the said registration is sought, उस असेसमेंट ईयर की तब मिलेगी, 6 महीने बचे होंगे। वो पर्पस यही है कि 31 मार्च तक तो मिल जाए आपको, तो पूरा साल दे देंगे आपको, लेकिन अगर नेक्स्ट ईयर में आएगी तो उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो बेसिकली ये आपकी टाइमलाइंस है। इसी तरह से आप मॉडिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कर दिया आपने किसी भी तरह से, ये हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को या टैक्स कंसल्टेंट्स को बहुत केयरफुल होने की जरूरत है। अब प्रॉब्लम ये आती है सर कि कब ट्रस्ट और सोसाइटी अमेंडमेंट कर लेता है, अपने मॉडिफिकेशंस करता है। मतलब ये सिचुएशन इस तरह की हो रही है कि मैं दुकान पे माल बेच रहा हूँ, कंप्यूटर्स बेच रहा हूँ, सडनली प्रिंटर का भी ग्राहक आ गया, या कोई
डिफरेंट आइटम, एयर कंडीशनर का कस्टमर आ गया, तो मैं एयर कंडीशनर खरीद के मैंने उसको दे दिया, तो मुझे समझ में नहीं आता मैं पहले अमेंडमेंट कराऊं या पहले कस्टमर दे। तो विद इन 30 डेज, और 30 डेज एक इतना छोटा टाइम है कि वो मतलब हम सब जानते हैं कोई आता ही नहीं, तो ऐसे लगता है पूरी रौनक पूरा साल लगी रहेगी, कभी जो ट्रस्ट का काम करने वाले लोग हैं कि किसी ना किसी के तो अमेंडमेंट चल रही है। तो विद इन 30 डेज मुझे लगता है कि मैक्सिमम वायलेशन इसी में होंगे, वो कर ही नहीं पाएगा, वो कहां से पॉसिबल है उसके लिए कर पाना। हम तो 30 डेज में करेंगे सर, लेकिन प्रिंसिपल सीआईटी या सीआईटी साहब 6 मंथ्स में करेंगे सब इसको, जब उनको एप्लीकेशन मिल जाएगी। एनी अदर केस इंक्लूडिंग प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन 1 month prior to the commencement of the previous year relevant to the assessment year from which the said registration is sought। कोई भी ऐसा केस है और किसी तरह की कोई चेंज है, ऊपर बात कर रहा था मॉडिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की, मेरे ख्याल से नीचे ये बात कर रहा है एड्रेस चेंज हो गया, कोई ट्रस्टी बदल गया, कोई कुछ भी हो गया, तो 1 महीने के अंदर अंदर आपको सब कुछ देना ही देना है, और विद इन 1 month आपको डिपार्टमेंट उसको एक्सेप्ट करके देगा वो अप्रूवल्स के लिए। तो ये कैसे होगा, ये प्रैक्टिकली एक सब्जेक्ट हो सकता है, बट आई थिंक जब जीएसटी हो गया तो ये क्या चीज है, और वही वाली बात आ गई, असंभव तो हम लोगों के लिए तो कुछ है नहीं, हम पे तो जितना आप प्रेशर डाल सकते हो डाल दो, हम उसके बीच में से फिर निकल के बाहर आ जाते हैं। इतना बड़ा जीएसटी एक्ट समझ करके आज 2021 में सब कहने लगे इसमें है क्या, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इट्स वेरी सिंपल एक्ट नाउ। सो दिस वी कैन गो अहेड विद दिस। एक अमेंडमेंट और है सर जो बड़ी इंपॉर्टेंट आई थॉट टू डिस्कस विद यू, पावर ऑफ कैंसलेशन। सेक्शन 12A के अंदर जिस तरह से एफसीआरए के अंदर पावर्स थी एक नोटिस देने के साथ साथ कैंसलेशन की, सिमिलर पावर्स यहां पे डिराइव कर ली इन्होंने। वेयर प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर इज सेटिस्फाइड दैट द एक्टिविटीज ऑफ सच ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन आर नॉट जेन्युइन और नॉट बीइंग कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन। मतलब एक नेगेटिव स्टेटमेंट है सर कि मेरी सेटिस्फेक्शन हो गई साहब, मेरे पास कोई कंप्लेंट आ गई, वो कह रहा साहब ये तो नहीं कर रहा, तो मुझे उससे तसल्ली हो गई। सेटिस्फेक्शन नोट हम समझते हैं कैसे बनते हैं, कैसे क्या होता है, तो ही हैज अ राइट टू गो अहेड टू कैंसल इट वेयर द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन इज नॉट एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11 और 12। यहां पे मैं थोड़ा सा आप सब लोगों का ध्यान चाहूंगा। बेसिकली क्या है, 11 और 12 के अंदर अगर मैं एलिजिबल नहीं था तो एप्लीकेशन फाइल हुई। आप सब लोग एक चीज का ध्यान रखिएगा सर, फाइल करते वक्त जितना मर्जी कह दीजिए कि डीएससी जो है वो ट्रस्टी के लगे हैं, जितना मर्जी कह दीजिए कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, बट आपका आईपी एड्रेस भी साथ में जा रहा है। आप इसको देखेंगे तो हम किसी और वेबिनार पे इस पॉइंट को मैं डिस्कस करूंगा आपसे कि जो प्लेस की जगह है, आजकल डिपार्टमेंट के जो फॉर्म्स हैं प्लेस की जगह पे आईपी एड्रेस डालते हैं। आईपी एड्रेस का मतलब है ये कहां से फाइल हुए थे सर। वापस में आऊंगा वही एक्सेल की फाइल पे फिल्टर लगाते ही 1 सेकंड में पता लगता है कि हेमंत पावा जी के ऑफिस से कितनी एप्लीकेशंस फाइल हुई। फट से बता देता हूं कि ये 40 एप्लीकेशन पावा जी कर रहे हैं, जिसमें से विद ड्यू रेस्पेक्ट टू पावा जी, आई एम जस्ट टेकिंग द अदर एग्जांपल, अदरवाइज कितनी ठीक है और कितनी गलत। तो ज्यादा देर नहीं लगती ये पता करने में कि कौन प्रोफेशनल्स क्या कर रहा है, तो कहां से कैसे चलेगा। वैसे ही कैन सर्च आउट कि कौन प्रोफेशनल कितने ट्रस्ट फाइल कर रहा है, क्या करता है, किस तरह की मतलब अगर वो रडार पे जा रहे हैं तो हम लोग भी साथ साथ जा रहे हैं, तो हमें केयरफुल अपने आप को, हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, जो मशीन लर्निंग है, वो भी हमें इंप्रूव करनी पड़ेगी कि ये उतनी ही इंपॉर्टेंट है। मेरा आईपी एड्रेस जाने का मतलब है कि विनोद रावल का नाम स्ट्रेट अवे उन सब रिटर्न्स के साथ जुड़ गया, irrespective of this fact that I have not been linked by the assessee himself। उसने ही मुझे लिंक नहीं किया पर मैं हो गया। आज भी आप और हम सब फेस करते होंगे ये प्रॉब्लम्स कि आज भी जो नोटिस 142(1) के आते हैं, जिनका मैं 20 साल पहले कभी मैंने रिटर्न फाइल की थी और मैं आज है ही नहीं वो, उनकी भी मुझे नोटिस मेरे ईमेल पे आता है। ये कहां से डिपार्टमेंट उठाता है हमें नहीं पता, बट वो आता है। कितनी बार तो मना करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी आती रहती है। तो सिमिलर थिंग्स आर गोइंग टू हैपन व्हेन ए ट्रस्ट विल वैनिश ऑफ। वो भाग जाएगा, कहीं जाएगा, कुछ भी हैंकी पैंकी करेगा, सबसे पहला जो सॉफ्ट कॉर्नर में फंसेगा वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा जिसके आईपी एड्रेस से गया हुआ। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि यहां वर्ड है वेयर द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन इज नॉट एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन।
इसकी एलिजिबिलिटी देखना मेरा काम था नहीं, मैं तो पेपर फाइल करने वाला आदमी था अभी तक, मेरा काम तो डॉक्यूमेंट्स लेके मैं अपलोड करा रहा था खाली। बट नाउ ही सेज कि नहीं, एलिजिबिलिटी भी देखेंगे आप भी उतने ही जिम्मेवार हैं जितने प्रिंसिपल सीआईटी साहब जिन्होंने ग्रांट की रजिस्ट्रेशन। Then comes where the trust or institution has not complied with the requirements of any other law. किसी भी लॉ का उसने वायलेशन कर दिया, इट इज नॉट इनकम टैक्स एक्ट सर। उसने स्कूल चलाता था, वहां पे कोई एजुकेशन का कोई लॉ था, वो वायलेट हो गया किसी तरह का, और हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल के अंदर से किसी तरह से कोई आईपीसी सीआरपीसी के दुनिया जहान के हम सब जानते हैं प्रॉब्लम आते हैं, तो कोई भी अगर आती है तो इमीडिएटली उसकी ट्रस्ट की रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी। ही हैज अ राइट टू गो अहेड। तो आप देखिए कितनी बड़ी उसके पास पावर्स हैं 12AB के अंदर कमिश्नर के पास, और उसमें सिर्फ और सिर्फ उसको जो है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में आपकी साइड उसको लेकर के आपसे शोकॉज देकर के रिप्लाई लेना है, खाली पर्सनल हियरिंग भी नहीं है उसके अंदर। वो अलग बात है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने जब फेसलेस को ही उड़ा दिया कि पर्सनल हियरिंग आप डिनाई नहीं कर सकते, इट इज वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस। क्योंकि अब राजेश जी भी एडवोकेट हो गए हैं, मैं भी थोड़ा थोड़ा हो गया हूं, तो बेसिकली अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है कि इस फैक्टर को भी पढ़ा जाए कहीं ना कहीं, इस सब्जेक्ट को भी हम सब लोगों को, भले ही हम लोगों ने नहीं पढ़ा था कभी उतना डीप में जाके, हमारे कमर्शियल लॉज का ये उतना पार्ट नहीं रहा, बट आई थिंक नाउ जब हम हैंडल कर रहे हैं आईटी एक्ट को, आईटी एक्ट में मैं इनकम टैक्स एक्ट नहीं कह रहा सर, मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की बात भी कर रहा हूं कि हमें कहीं ना कहीं आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को भी सामने रख के और बाकी चीजों को देख के, वहां पे एविडेंस एक्ट क्या कहता है कि हम कितने, हमारी एविडेंटरी वैल्यू है इस आईपी एड्रेस की, हाउ मच रिस्पॉन्सिबल वी आर, इज दिस ए वैल्यू। क्योंकि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से लॉयर्स की तरफ वाली इम्यूनिटी नहीं मिली हुई है, हमारी प्रेवी नहीं है हम क्लाइंट और सीए के बीच में, वी आर ओपन, वी आर वेरी वल्नरेबल, कहीं भी हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, हम तो बिल्कुल पोरस है। सबसे पहली रेड चाहे वो रिया चतुर्वेदी की हो तो सबसे पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट पे रेड होती है, रिया को तो पूछता भी नहीं कोई, सबसे पहला नोटिस ईडी का सीए को जाता है कि साहब तुम तो अकाउंट्स लेके आ ही जाओ अपने, तो सबसे इजी टारगेट है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन फ्यूचर के हम कहां कहां जा रहे हैं। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग सबसे पहले नोटिस देता है, क्योंकि ये ट्रस्ट वह सब, मतलब अगर मैं मेरी बात करूं तो बहुत सारी चीजें मैंने भी इंटरेस्ट के साथ देखी अपने साथ साथ कि कहां प्रॉब्लम्स आ जाती है। टाइम लिमिट फॉर मेकिंग एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल ऑफ एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन 6 months प्रायर, इसको छोड़ देते हैं, फिर दोबारा से वही है, लेट्स गो अहेड। चलिए अब हम उस सेक्शन पे आते हैं 115 TD, जो हमें सबसे ज्यादा परेशान करता है, जहां से मैं जनरली अपनी पीपीटी शुरू करता हूं कि हम ये सब बेसिकली रजिस्ट्रेशन, एक क्वेश्चन है बहुत लोगों के दिमाग में, और एक हमारी शायद जो मेरे जैसे स्टूडेंट्स हैं उनके भी दिमाग में कहीं ना कहीं है कि क्या ये 12AB का रजिस्ट्रेशन में अगर नहीं कराऊंगा तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन। सो जब व्हाट विल हैपन की कहानी आती है तो क्या ये मैंडेटरी है क्या, अगर मैं नहीं कराता हूं तो मेरे लिए मर्जी थोड़ी, मैं चॉइस है मेरी। तो इन माय ओपिनियन इट इज नॉट चॉइस सर, इट इज मैंडेटरी, क्योंकि अगर आप नहीं करते, अगर आप 115 TD को पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाता है ये मैंडेटरी है। Notwithstanding anything contained in this act, तो पहली 4 वर्ड्स ने सब कुछ कह दिया है। Notwithstanding anything contained in this act, where in any previous year a trust or institution registered under section 12AB मान लेते हैं has converted into any form which is not eligible for grant of registration, मैं आगे का लाइन नहीं पढ़ रहा हूं, कि मैंने अपने आप को ऐसे कामों में डाल दिया कि मैं सेक्शन 215 से बाहर आ गया, मुझे अब रजिस्ट्रेशन मिल ही नहीं सकती, मैं 215 में कवर्ड नहीं हूं, बाहर हो गया। दूसरा कहता है मर्ज्ड विद एनी एंटिटी अदर देन एन एंटिटी व्हिच इज अ ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन हैविंग ऑब्जेक्ट्स सिमिलर टू इट, तो पहले जैसी ही कहानी है कि मैंने अपने आप को मर्ज कर दिया नॉन उसके साथ। failed to transfer upon dissolution all its assets to any other trust or institution, मैं डिसॉल्व हो गया ट्रस्ट मेरा, लेकिन मैंने अपने एसेट्स को किसी ऐसे ट्रस्ट में डिसॉल्व नहीं किया, अब्सॉल्व नहीं किया, जाकर के मर्ज नहीं किया जो 12AB में कवर होता, और टू एनी फंड, वो इस पे नहीं जा रहा हूं मैं, आगे चलता हूं। देन ये लीजिए,
मैं इसके पार्ट 3 पे सीधा चला गया हूं। मैं ये सेकंड लाइन अगर आप कहें तो पढ़ देते हैं, चलिए। देन इन एडिशन टू द इनकम टैक्स चार्जेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ द टोटल इनकम, द accredited income of the trust or the institution as on the specified date shall be charged to tax, and such trust or institution as the case may be shall be liable to pay additional income tax, sir। जो नॉर्मल टैक्स लगना है वो लगेगा, एडिशनल लगेगा एट द MMR 164 पे जाएंगे आप, अगर आपने ऊपर वाला कोई काम किया था देन। ये नंबर 3 पे आ रहा हूं सर, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ सर, इसको थोड़ा सा देखिए। For the purposes of subsection 1, a trust or an institution shall be deemed to have been converted. The word is, sir, deemed to have been converted into any form not eligible for registration. Number 1, the registration granted to it under section 12AA has been cancelled. सर जब मैं 12AB में गया नहीं तो मेरा 12AA तो कैंसिल हो गया। जब मैं कैंसिल हो गया तो 115 TD में आके गिरा, मैं आके वापस, मैंने अप्लाई नहीं किया। पार्ट नंबर 2, सो इट इज मैंडेटरी, अगर आपको ट्रस्ट में रहना है और टैक्स, अगर तो आपको सारे पैसे सरकार को ही देने हैं फिर तो बात ही छोटी, फिर तो हम पढ़ने की जरूरत ही नहीं। हम पढ़ इसलिए रहे हैं कि मेरा जो ट्रस्ट का पैसा है उसकी इनकम एग्जम्प्ट है, लेकिन वो अब ये 115 TD कैसे कैलकुलेट होता है वो एक अलग है। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स ले लीजिए माइनस लायबिलिटीज करके, जो नेट आएगा वो सारा सरकारी पैसा है, सरकार ही उस पर टैक्स देगी और बाकी सरकार ले जाएगी, क्योंकि आपका तो है ही नहीं कहीं से, आप वापस ट्रस्टीज के पास थोड़ी जाना है इस पैसे। तो सरकार तो अपने पैसे को बांट रही है कि 30-40% इनकम टैक्स को दे दो, बाकी 60% डीएम साहब को दे दो, वो बांट देंगे कहीं पे जाके, या किसी ट्रस्ट में मर्ज कर देंगे, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर देंगे। पार्ट नंबर 1, द रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड टू इट अंडर सेक्शन 12A has been cancelled or it has adopted or undertaken modification of its object which do not conform to the conditions of registration, and अब मैं यहां रुकता हूं 1 मिनट के लिए फिर से। the objects which do not conform to the conditions of registration, सर मैंने जो ऑब्जेक्ट्स में रजिस्ट्रेशन कराया था एजुकेशन के लिए, स्टार्ट कर दिया मेडिकल, सो यहां भी मुझे केयरफुल होना पड़ेगा आप कि मैं जिसके लिए मेरे पास रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड है मुझे उसी ऑब्जेक्ट्स के लिए ही काम करना है, वरना मेरे पे फिर ये सेक्शन 115 TD लगता है। एंड इट हैज नॉट अप्लाइड फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 12AA और 12AB। और क्लैरिफाई कर दिया सर नीचे आके, ऊपर कैंसल्ड की बात पे हम रुक गए थे, अगर पार्ट ए में आएंगे तो उसने कह दिया कि आपने अप्लाई किया ही नहीं तो 115 TD लग गया। पार्ट नंबर बी, हैज फाइल्ड एप्लीकेशन फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन बट द सेम हैज बीन रिजेक्टेड। तो मैंने या तो अप्लाई नहीं किया या अप्लाई किया था और रिजेक्ट हो गया। इन ऑल सर्कमस्टांसेस मेरे पे 115 TD लगता है, तो मेरे पास सर ये ऑप्शन नहीं है। इट इज ए मैंडेटरी फॉर मी टू गो टू 12AB। तो जो भी ट्रस्ट सोच रहा है कि मेरे पे एप्लीकेबल नहीं है, इन माय ओपिनियन, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन सर, आई हैव heard different opinions also on different platforms, but this is my personal opinions. Yes, this is mandatory, it is not voluntary, it is not your choice. This is my thought here. आखिरी पार्ट पे जा रहा हूं सर मैं, जो अभी हमारे पे इस साल एप्लीकेबल है ऑलरेडी, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ डोनेशन। एज ऑन 31st May, जैसे हम TDS की रिटर्न फाइल करते थे उसी तरह से हमें इस साल से एक फॉर्म भरना पड़ेगा, ये वाला फॉर्म 10BD। ऑनलाइन है सर, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने यहां लगा दिया है। रूल 18AB हैज बीन इंडक्टेड which says mandatory furnishing of statement of donations by trusts or institutions approved under 80G। हमने शुरू में बात की थी क्रॉस वेरिफिकेशन ऑफ डोनेशंस। ये क्रॉस वेरिफिकेशन ऑफ डोनेशंस है। कोहली साहब ये AIS में इस बार ये भी आएगा कि आपने डोनेशन कहां कहां दिया है। डोनेशन आएगा, सब कुछ आ जाएगा उसके अंदर सर। बस सब कुछ में भाई इतना ही रखिएगा सर। नहीं सर, वो इतनी डिटेल मांग रहे हैं, वो एक तो because once I do everything is not digital, what was usually not possible because the digital technology, everything is going to be cross indexed. Very true, very true. चलिए 18AB rule has been added to it. स्टेटमेंट ऑफ डोनेशन 31st May को फाइल करना सर। फाइनेंशियल ईयर 21-22 में ये एप्लीकेबल है सर हमारे। ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस रिसीविंग डोनेशंस आर रिक्वायर्ड टू इशू
डोनेशन सर्टिफिकेट दैट टू बाई 31st ऑफ May। तो मतलब आपको रिटर्न भी भरनी है, वो एक्चुअली क्या हो डाउनलोड करके, वो तो ऐसा सोच रहे हैं ना कि आपके सॉफ्टवेयर लगे हैं, आपने बटन दबाया और ईमेल अपने आप सब 1 लाख लोगों को चली जाएगी जिसको आपने डोनेशन का सर्टिफिकेट भेजना है। 10B के अंदर सर्टिफिकेट ऑफ डोनेशन जाएगा। सो ये कंसेप्ट ऑफ क्रॉस वेरिफिकेशन है सर। बी केयरफुल, 200 रुपए पर डे की 234G में पेनल्टी लगेगी सर, और उसके अलावा 271K में अलग से पेनल्टी लगेगी अगर आपने फाइल नहीं की, क्योंकि इन्होंने, अगर आपको हाईकोर्ट की वो जजमेंट याद हो जो 234E पे लगी थी, उन्होंने कहा था कि ये तो फीस है, दिस इज नॉट ए पेनल्टी, ये तो हम अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ले रहे हैं। जब आप 31 मई तक फाइल नहीं कर रहे, आप उसके बाद आ रहे हो, तो अब 200 रुपए पर डे आपसे एडमिन कॉस्ट ले रहे हैं, दिस इज नॉट पेनल्टी, क्योंकि पेनल्टी में मेंस रिया चाहिए, फीस में मेंस रिया नहीं चाहिए, तो वो तो मैकेनिकल है। तो यही कॉन्सेप्ट जीएसटी में अप्लाई हो गया कि हर चीज के साथ पर डे पेनल्टी लगती है, बस वो पे करते रहिए। तो 271K 10,000 रुपए की जो पेनल्टी है, विच कैन एक्सटेंड टू 1 लाख, वो तो मेंस रिया पेनल्टी से है कि आप क्यों नहीं फाइल कर पाए। मतलब मुझे कभी कभी, सच बता रहा हूं, बड़ा दुख होता है जी, किसी के परिवार में कोई दिक्कत हो जाती है, किसी का, ये कोविड का समय था, क्या क्या लोगों ने नहीं देखा, उसके बावजूद भी इतनी लाखों रुपए पेनल्टीज हमें पे करनी पड़ी और ये एडिशनल फीस देनी पड़ी, जिसके साथ मतलब कुछ कर ही नहीं सकते थे चॉइस है, या तो वायलेशन कंटिन्यू करिए आप, आइदर यू फील इट, नो चॉइस एट ऑल, आपके पास ऑप्शन नहीं थी। अब ये लास्ट, सर आई एम ऑन द लास्ट स्लाइड ऑफ माय प्रेजेंटेशन, आई थिंक आई हैव 5 मिनट्स राजेश जी, आई कैन गो आउट विद 5 मिनट्स। यस सर, यस सर, यस सर। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें। सर डूज में है, ट्रस्ट पब्लिक बनाइएगा, प्राइवेट मत रखिए, प्राइवेट कास्ट क्रीड के लिए मत रखिएगा, एक्सेप्शंस आर देयर, दैट इज वेरी ट्रू, बट ट्राई टू बी ओपन फॉर ऑल। और वैसे भी हमको इस सोसाइटी ने बहुत कुछ दिया है, तो हमारा फर्ज हम इस सोसाइटी को ही वापस करें। किसी पर्टिकुलर मैं अगेंस्ट नहीं हूं किसी उसके कास्ट कम्युनिटी के, मैं भी अपने रिलीजन को फेथ करता हूं, ये मेरा फेथ हो सकता है, बट उसके साथ साथ इंसान, ह्यूमैनिटी होती है सर। इनकम क्लेम्ड एग्जम्प्ट टू बी डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट, सिर्फ वही वाली इनकम है सर एग्जम्प्ट, सारी नहीं है। सेक्शन 11 को दोबारा से देख लीजिएगा। ट्रस्ट जो है वो होली चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पसेस के लिए होना चाहिए। मैंडेटरी ऑडिट है अगर आपकी इनकम टैक्सेबल है उसके कंट्रीब्यूशन से। वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और भरना मत भूलिएगा प्लीज उसके कॉलम के अंदर। एक्टिविटीज ऑफ द ट्रस्ट एज पर मेन ऑब्जेक्टिव, क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा सर कुछ लोगों ने नंबर जो है जो नहीं मिल रहा था इधर उधर, क्योंकि बहुत सालों से भरे नहीं थे, तो ऐसे ही लिख दिए, अब वो वेरीफाई नहीं हो रहे वहां पे, तो वो प्रॉब्लम भी आ रही है उनको। अप्लाई 85% ऑफ द इनकम ऑन चैरिटेबल। फाइल फॉर्म 9A और 10 एज एप्लीकेबल विद इन ड्यू डेट, ड्यू डेट मतलब और रिटर्न फाइलिंग है। कैपिटल गेन अगर कोई आया है इस साल किसी साल में, तो उसको उसी साल में री इन्वेस्ट कर दीजिए, तब आपको एप्लीकेशन ऑफ इनकम मिलेगा, नहीं तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। यहां 54 नहीं लगता है। डोंट्स की अगर बात करते हैं तो उसी का ही उल्टा आएगा बेसिकली, तो कि आप प्राइवेट मत कीजिए, बेनिफिट ऑफ सोसाइटी के लिए बनाइए। Don't try to gain, provide benefit for the benefit of author, founder, manager, trustee or their relatives directly or indirectly. Funds 11(5) में इन्वेस्ट करिए as per requirement, subject to exceptions है, हमने देख लिया कि डेट ऑफ मैच्योरिटीज भी मांगता है। FDs are covered under 11(5), आपके बैंक डिपॉजिट्स खाली सेविंग नहीं होते, वो भी आते हैं। नो anonymous donations, 30% पे टैक्स हो जाएंगे, नहीं तो कुछ 1 लाख तक का एग्जम्पशन है, 5% का, सिर्फ उतना ही है। सबसे इंटरेस्टिंग लास्ट लाइन कह के मैं अपने आज के इसको क्लोज करना चाहूंगा। जब हम फॉर्म 10 फाइल करते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग उसमें एक्यूमुलेशन के वो मिलते हैं सर ऑब्जेक्टिव, बड़े मजेदार। तो वो जरा वेग मत बनाइए, उसको थोड़ा स्पेसिफिक लिखिए। बिल्डिंग बनानी है तो बनाइएगा, ऐसे ही मत लिखिए कि हमें किसी का इलाज कराना जी 5 साल के बाद, तो इसलिए 5 साल के बाद पैसे चाहिए। मैं तो मेडिकल के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ, 5 साल बाद अपना इलाज कराना है। इसी तरह से एजुकेशन पे भी लिख देते हैं लोग। So be careful while writing. So this is the from my side, sir. Thank you very much, Hemant Pawar ji, and I think Dameja ji side pe the, Sunil Dameja ji, thank you very much, and Kohli साहब, thank you for being on screen for the whole, I think 2.25 घंटे आप पूरा रहे, राजेश जी और आप। हेमंत पावा जी, राजेश जी, कोहली साहब, सुनील दमेजा जी, thank you very much, अशोक गुप्ता जी, for being on screen.
मैं पैनल में यही देख पा रहा हूं, बाकी मैं देख नहीं पा रहा। एंड थैंक यू पार्टिसिपेंट्स, आई थिंक 154 पार्टिसिपेंट्स संडे के दिन शाम को 7 बजे इस मौसम के अंदर। राजेश जी आपका जलवा है, आपके पूसा रोड स्टडी सर्कल की जो टीम है, लिटरली दे डिजर्व ए लाउड अपलॉज फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सर, थैंक यू। एक सर कुछ क्वेश्चन है, आप पढ़ेंगे रिप्लाई करेंगे या मैं पढ़ूं सर? जैसा आप ठीक समझे सर। मैं नहीं, बेटर है सर, आप ही पढ़ लीजिए सर, बेटर है। पहला क्वेश्चन। हाँ जी सर, जी सर। Sir, whether a trust registered under the Income Tax Act and not claiming exemption can file form number 7. Sir, whether a trust registered under the Income Tax Act and not claiming exemption can file form number 7. Sir, exemption claim क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं करोगे? मतलब रीजन नहीं समझ में आया। फिर बनाने का पर्पस क्या है, फिर यूज क्या है, आप क्या टैक्स देना चाह रहे हैं उसके अंदर? तो आई थिंक यू हैव टू फाइल फॉर्म 7 ओनली एंड क्लेम एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11 सर। रजिस्टर्ड है आप, जो मैं पढ़ पा रहा हूं इसमें अनोनिमस अटेंडी है आप। ट्रस्ट इज वेरी मच रजिस्टर्ड अंडर इनकम टैक्स एक्ट आप लिख रहे हैं, तो इसका मतलब 12A में रजिस्टर्ड है आप। वंस यू आर रजिस्टर्ड यू आर एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन अंडर इसके अंदर 11 के अंदर। टेक द एडवांटेज, आई डोंट थिंक यू शुड फोरगो इट। इट्स ए सोसाइटी का पैसा सर, उसको वापस कीजिए, सरकार को देके क्या मिलेगा आपको? मोटिव तो यही था ट्रस्ट बनाने का आपका। थैंक यू सर। And then what will be the treatment of receipt from the sale of capital asset? I think I have covered it. Reinvest it within the year, और एप्लीकेशन में डाल दीजिए सर जितना आप इन्वेस्ट करेंगे। Dissolution and irrevocable provision is necessary for 12AB. Yes sir, it is very much अंशुल अग्रवाल साहब। ऊपर वाला क्वेश्चन कैलाश चंद्र अग्रवाल साहब का था। थैंक यू कैलाश जी। अंशुल अग्रवाल साहब, डिसोल्यूशन एंड इररिवोकेबल प्रोविजन इज नेसेसरी फॉर 12AB। सर ये पहले से भी था, क्योंकि अगर आप एक सेक्शन है, मैं अगर एक सेकंड आप मुझे इजाजत दे दें एक सेकंड के लिए, आपके क्वेश्चन का जवाब उसी में है। सेक्शन 61 कहता है सर, रेवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, ऑल इनकम्स अराइजिंग टू एनी पर्सन बाय वर्च्यू ऑफ रेवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट्स शैल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स एज द इनकम ऑफ द ट्रांसफरर एंड बी शैल बी इंक्लूडेड इन हिज टोटल इनकम। तो अगर आप इररिवोकेबल नहीं बनाएंगे तो वो तो टैक्सेबल हो जाएगा सर। 61 सेक्शन पढ़ लीजिएगा सर। वेरी क्लियर, थैंक यू अंशुल जी। एंड जगदीश अजमानी साहब, द अबव क्वेरीज विद रिगार्ड टू फॉर्म 10 रजिस्ट्रेशन। जगदीश जी आपकी क्वेरी क्या है, मैं वो नहीं समझ पाया। इनकी क्वेरी ये थी सर कि वो एग्जम्पशन ना ले फाइल करें तो। ये पहला है, द सेसी एज फाइल रिटर्न अप, जो आपने लिखा था कि इनकम टैक्स एक्ट में रजिस्टर्ड है और 7 क्लेम नहीं करे। नहीं, ये कह रहे हैं द सेसी एज फाइल रिटर्न for the assessment year 21-22, yet point number 10 does not enable and ask to fill point number 10 to 19, which is not otherwise required. मुझे ये क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा सर, इसको बाद में देख लेते हैं। जगदीश जी 2 मिनट रुक जाओ, अभी देखते हैं फिर आपका। ठीक है, ठीक। ये है अशोक सिंगला, इफ लैंड इज सोल्ड ऑन 31 मार्च। सर ये क्वेश्चन कुछ आगे पीछे है क्या? नहीं, ये इनकम्प्लीट है सर, छोड़ दो इसको, पूरी क्वेरी नहीं है। अशोक सिंगला जी दोबारा लिख दीजिए अगर हम आपको जवाब दे पाए। मतलब अगर आप उसमें 31, अच्छा इनका शायद क्वेश्चन ये रहा होगा, वो उनके साथ कैपिटल एप्लीकेशन ऑफ फंड का होगा सर। अगर लैंड सेल किए तो क्या करेंगे जी सर? उसमें चले जाइए ना, 9A फाइल करके डीमिंग ले जाइए आगे। रिसीव तो हुआ नहीं आपको, आप दीजिए कि नेक्स्ट ईयर उसको करेंगे। If trust sells land at शिव कुमार जी लिखते हैं, trust sells land at 10 lakhs and 50C value is 20 lakhs. Land was purchased at 9 lakhs by taking loan of 8. After sale of loan of 8 lakhs is repaid. Taxability in the hand of trust. 10 लाख की आपने लैंड सेल किया और 50C वैल्यू 20 lakhs है, तो हम तो 20 मानते हैं पहले तो। लैंड वाज परचेज एट 9, तो कैपिटल गेन आया, तो सर उसका ये तो 20 का 20 टैक्स हो जाएगा पूरे का पूरा, क्योंकि यहाँ तो सॉरी कैपिटल गेन टैक्स हो जाएगा, बिकॉज आप री इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो इसमें कोई 54 फुट तो मिलना नहीं कुछ भी। और आपने लोन से लेके लिया था या कैसे लिया था, उससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं हमें, तो आपके बाइंग के टाइम की बात है। संजय जैन साहब हैं, ट्रस्ट इज रनिंग स्कूल एंड लाइब्रेरी सेपरेटली, डू यू रिक्वायर टू कंसोलिडेट द बैलेंस शीट ऑफ स्कूल एंड लाइब्रेरी? दोनों ट्रस्ट ही तो रन कर रहा है सर, बिल्कुल कंसोलिडेट होंगी सर, 100% होगी। आई थिंक राजेश जी आप भी एग्री करेंगे? यस सर, यस सर, यस सर। कोई नहीं इसमें। सत्या कुमार साहब है, टू सेव ourselves with regard to IP address, is it not possible to take 3-4 service provider connections in different trust name at same address?
सर एनी डेस्क लेके फाइल कर दीजिए ना, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं सर, उसी का आईपी एड्रेस चला जाएगा, डीएससी लगाते वक्त उसका एनी डेस्क ले लीजिए। बाकी जो सही काम करते हैं सर उनको थोड़ी डरने की जरूरत है, ये तो एक जनरलाइज्ड मेरा एक अवेयरनेस था खाली। आई एम जस्ट मेकिंग यू अवेयर कि जहां कहीं आपको लगता है कि कुछ रिस्क हो सकता है वहां रिस्क को मिटिगेट कर लीजिए बस खाली, क्योंकि हम तो प्रिवेंटिव मेडिसिन खाते हैं ना सर। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तो अपने क्लाइंट को इतना प्रोटेक्ट करके रखता है कि उसके क्लाइंट को ड्यू डेट नहीं पता होती और क्लाइंट सीएस होता नहीं है रात को। हमारे तो लोगो ही वही है सर कि जो रात को क्या सर वो अब मैं थोड़ा सा संस्कृत में कमजोर हूँ, राजेश जी आप बोल रहे या सुप्तेषु जागृति, असत्येषु जागृति। तो सब चलिए। राजेश सबरवाल साहब, whether educational institution having receipts less than 5 crores is required to file application for registration? Yes sir, they have 5 crore से नीचे की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सर आपने लिखा नहीं है 1023C में कवर्ड है या नहीं, अगर तो उसमें कवर्ड है तो फिर उसमें ले जाइए, नहीं तो फिर इधर ले जाइए। बाकी यस यू आर राइट, 12AB में तो आप कर ही दीजिए जब तक 23C होता है, ये एक रजिस्ट्रेशन ले लीजिए, कम से कम इन हैंड तो होगा आपके पास, क्योंकि एप्लीकेशन तो करनी ही करनी है आपको, स्पेंड तो करना ही आपने, बाद में इसको कन्वर्ट करा लीजिएगा। थैंक यू जी, थैंक यू राजेश सबरवाल साहब। संजीव गुप्ता, इन केस ऑफ ट्रस्ट रनिंग ए स्कूल एंड हैविंग रिसीट्स मोर देन 1 crore, इज इट मैंडेटरी टू फाइल TAR? नो सर, 44AB इज नॉट कवर्ड, सिर्फ 48(3), 40AIA वो सेक्शन लगते हैं हमारे पे, और 10,000 से ज्यादा कैश वाले TDS प्रोविजंस लगते हैं। और TAR की जहां तक आप बात कर रहे हैं तो इसमें कोई बिजनेस तो है ही नहीं, क्योंकि 44AB की जब आप पहली लाइन पढ़ेंगे, आप सेक्शन 44AB की पहली लाइन पढ़ें जहां टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की आप बात करते हो, तो वो तो पहली लाइन कहता है एवरी पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस, तो ट्रस्ट इज नॉट कैरिंग ऑन बिजनेस सर, तो ये उससे बाहर हो जाता है। If trust receives table and chairs worth ₹1 lakh in donation, how to show in the books of account? सर आपने खुद ही बताया सर 1 लाख है, ले लीजिए 1 लाख, बिल की कॉपी ले लीजिए, उनसे वैल्यूएशन हो जाएगी सर, इन काइंड उसके लिए हो सकता है, तो नॉट एन इशू। यू आर सेइंग इट इज वर्थ 1 लाख, उससे एक डिक्लेरेशन ले लीजिए मैं इतने वर्थ की दे रहा हूं, अंदाजा आपको भी है, तो इट्स ओके सर, कोई नोट इशू। शिव कुमार जी, थैंक यू शिव कुमार जी। शिव कुमार जी की क्वेरीज और भी है। Whether donation in kind exceeding ₹2,000 eligible for 80G? है राजेश जी, 80G में 2,000 से ज्यादा डोनेशन इन काइंड, ये in kind exceeding, I don't think it is allowed sir. नहीं, not allowed sir. Not allowed sir, not allowed. कृष्णमूर्ति टी साहब, कृष्णमूर्ति टी साहब आप रेज हैंड कर रहे थे शायद इसी क्वेश्चंस के लिए थे। I had applied for registration in the financial year 2021 but got approval in 21-22। वो तो सर सबकी लेट आई थी सर, 2021 के बाद तो कोविड आ गया था, दैट इज नॉट एन इशू, वो कंटिन्यूएशन में है सर, उसको उन्होंने परमिट कर दिया था सर, उसको एक बार चेक कर लीजिए उस पे असेसमेंट ईयर क्या दिया है, अकॉर्डिंगली यू कैन कैरी, नहीं तो उसको आप रेक्टिफाई करा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, दे आर डूइंग इट वेरी लिबरली। ज्योति शर्मा जी हैं, सर ए ट्रस्ट विश टू नो मोर कंटिन्यू विद चैरिटेबल एक्टिविटीज, ऐसा क्यों कर रही है साहब, एंड हेंस नॉट विलिंग टू अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, still it needs to register। I have given you 115 TD, पढ़ लीजिए, रिस्क देख लीजिए कितना है आपके पास, एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितने हैं, टैक्सेस कितने आते हैं, क्योंकि दिस इज नॉट योर विश टू कंटिन्यू और नॉट टू कंटिन्यू, ट्रस्ट इज नॉट योर प्रॉपर्टी, दिस इज नॉट माय बेबी, बेसिकली आई एम सिंपली ए कस्टोडियन। सो द बेस्ट सजेशन इज आइदर उसको किसी ऐसे ट्रस्ट में मर्ज कर दीजिए, जो लोग काम करें, समाज का पैसा है समाज में जाने दीजिए, क्यों हम क्यों उसके ऊपर बिना मतलब में अपने आप को बैठाएं। So my suggestion is trust which has a similar objective. Yes sir, which has a similar objective, that's very important, that's very important. Krishnamurti T, can I file ITR 7 in assessment 21-22? Yes sir, you can file it sir, you can very much file it sir, check it out. Thank you Krishnamurti sir. Yogi Raj Nevle, if the benefit of trust, benefits of a trust applicable to particular caste or community, in that case whether such trust can, देखिए सब कुछ exceptions हैं इसके अंदर, उस exceptions के साथ देख लीजिए benefit of trust applicable है या नहीं है, मतलब वो सेक्शन 11 आपको 13 को देखना पड़ेगा जा करके एक बार, exceptions देख लीजिए, कुछ जगहों पे है, जैसे धर्मशाला में अब एक एग्जाम्पल आता है कि महेश्वरी धर्मशाला में वो लिख सकते हैं कि हम सिर्फ महेश्वरीज को देंगे कमरा, लेकिन वो ये नहीं, अगर वो खाली पड़ा हुआ है और महेश्वरीज भी नहीं है तो दूसरा आ सकता है,
तो उस तरह से वो बना लेते हैं अपने बाइलास को कि प्रायोरिटी उनको देंगे, तो थोड़ा बहुत अमेंडमेंट किया जा सकता है, बट जनरली ये है कि पर्टिकुलर कास्ट कीट को रिस्ट्रिक्टेड है सर, ऐसा नहीं है, वी हैज टू बी फॉर द ह्यूमैनिटी। एंड वैसे भी सर क्यों हमने इस चक्कर में, हम सब एक ह्यूमन इंसान है सर, लेट अस बिहेव लाइक ए ह्यूमन बीइंग, वी हैव टू बिहेव, तो सजेस्ट देम टू ओपन इट फॉर ऑल। Application of income can be taken from income and expenditure of receipt and payment account. I couldn't understand. Anshul Agarwal ji क्या कहना चाह रहे हैं? Application of income can be taken from income and expenditure or receipt and payment. सर इनका ये होगा कि एक्रूवल सिस्टम में जो खर्चा डाला हुआ है वो भी एप्लीकेशन में ले जाएं या सिर्फ पेमेंट का लेना है? I think वो ले सकते हैं, उसमें तो कोई इशू नहीं। We can take it from Sir, receipt and actually, payment. what I think is they have to जो कैपिटल का खरीदा हमारा वो भी मेरी एप्लीकेशन है। हाँ, वो रिसीट एंड पेमेंट में आएगा ना, सर डेप्रिसिएशन रिसीट एंड पेमेंट में आएगा ना वो तो, हाँ रिसीट एंड पेमेंट में आएगा। What is taxability of donation received by educational society registered under Societies Act but not registered under section 12AB? सर इसका तो आज डिस्कशन ही नहीं सर, ये तो नॉन रजिस्टर्ड हो गया ना, तो 12AB में रजिस्टर्ड है ही नहीं, तो ये तो नॉर्मल एओपी हो गया, जाकर के आईटीआर फाइल कीजिए, उसको नॉर्मल टैक्सेशन कराइए जो भी उसकी बनती है। So this is the only, any question left out sir? एक लास्ट का है अशोक शर्मा जी का सर, लास्ट क्वेश्चन। अच्छा सॉरी मैं मिस कर गया था। ओके सर, there is one amendment that corpus donation to be kept in bank account, should it be separate bank account or can be existing bank account separate FD? I think ऐसी कोई कंडीशन उन्होंने लगाई नहीं है, आप 11.5 के जो मोड्स हैं उसमें रख सकते हैं, बट सेपरेट रखें तो नेचुरली बहुत अच्छा, आपके लिए भी इजी है कि कॉर्पस फंड अलग से पड़ा हुआ है आपको दिखाई देता है, बट आई डोंट थिंक ऐसी कोई उन्होंने कंडीशन नहीं दी हुई है कहीं पे। There is nothing. So it was 20 questions which has been answered. I don't, एक जगदीश जी का था, अब I think we could not find the question. सर एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। जी जी, ये ITR 7 में जो शेड्यूल है इसका एप्लीकेशन ऑफ फंड्स का जो आपने दिखाया था, जी जी, उसके अंदर आता है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर एक्सपेंसेस करके, उसमें सारी डिटेल है। जी जी, उसके नीचे जो बी पोर्शन है उसमें आता है एप्लीकेशन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ट्रस्ट, तो ऑब्जेक्ट्स के अंदर उसमें कंसोलिडेटेड अमाउंट, तो उन दोनों में से किस में डालना चाहिए? अदरवाइज तो सारा खर्चा इट इज डीम्ड टू बी फॉर द ऑब्जेक्ट्स ओनली, एडमिनिस्ट्रेटिव तो एसेट कुछ होता नहीं। देखिए उसमें मेरे ख्याल से कहीं कुछ इंटरप्रिटेशन का इशू होगा, क्योंकि जब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में तो आप पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए जा ही नहीं सकते, वो तो जितना उनका सारा है ही उसी ऑब्जेक्ट के लिए, यस कर दीजिए, उसमें तो उन इतना बड़ा नहीं, उन दोनों में फर्क है सर, ऊपर वो अदरवाइज मांगता है, नीचे कंसोलिडेटेड एक ही कॉलम रो है। आप अगर उस पेज में एक बार ऐसा करेंगे, एक बार ऐसा करते हैं हेमंत जी, मैं आपका नंबर राजेश से लेके ना 1-to-1 देख लेंगे एक बार सामने। जी सर, जी सर। सर एक चीज और था, जो ट्रस्टीज जैसे स्कूल चला रहे हैं और होली एंगेज हैं, कैन दे ड्रॉ रेम्युनरेशन फ्रॉम देम द स्कूल, दो इट इज सम आर पेइंग सैलरीज टू देयर स्कूल प्रिंसिपल्स एंड अदर थिंग्स, बट जनरली डिपार्टमेंट इज अगेंस्ट इट, तो वो कुछ तो लिटिगेशन चलती है, बट व्हाट इज द योर ओपिनियन कि कैन बी पेड टू द पर्सन होली एंगेज विद द स्कूल, उसकी कोई और इनकम? सर देखिए आप 13.3 में जाइए, वो कहता है कि आपने सर्विसेज अवेल की हैं, आर्म्स लेंथ पे अवेल कर लीजिए, इनकम टैक्स को तो प्रॉब्लम नहीं है उसमें। आप 13.3 में देखिए जाके कि आपके ट्रस्टीज जो है अगर वो सर्विसेज अवेल कर रहे हैं और वो सर्विसेज मार्केट रेट्स पे है। सर इसमें तो ट्रस्ट अवेल कर रही है ना उनकी, आपकी जो एलिजिबिलिटी, सर दोनों दो चीजें हैं, मैं तभी कह रहा हूं ना, एक है कि ट्रस्ट अवेल कर रहा है सर्विसेज, वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, प्रिंसिपल बन गए तो उसमें वो टीचिंग भी कर रहे हैं, तो दैट इज सर्विस टू दी। एक मिनट। और दूसरा है कि कोई एसेट्स ट्रस्ट के हैं, जैसे कोई प्रॉपर्टी है या गाड़ी है, वो उनको दे दी जाए, दैट इज यूज बाय द ट्रस्टी ऑफ द ट्रस्ट प्रॉपर्टी, तो उस केस में तो वायलेशन हो जाएगा, इट इज डीम्ड टू बी इनकम। तो जहां सर्विस वो दे रहा है तो कैन और लोन दिया है तो उसको इंटरेस्ट भी दे सकते हैं ट्रस्टी को? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, अगर लोन उसने देखिए आप मार्केट से लेंगे तो भी तो इंटरेस्ट देंगे, पर वो नॉर्मल लेंथ पे रहिए सर, कोई दिक्कत नहीं है, मैचिंग विद द मार्केट चलिए, इनकम टैक्स नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, पर वो डिपार्टमेंट नॉर्मली उसकी एग्जाम्पशन उड़ा देते हैं कि हाँ जी जितना, और एक कुछ अमेंडमेंट भी आई थी ना शायद कुछ साल पहले कि अगर होल पूरी एग्जाम्पशन नहीं जाएगी
सिर्फ जितना पोर्शन उसको एक्सपेंडिचर दिया है उतने पोर्शन को वो डीम टू बी इनकम ले लेंगे। सर देखिए, एक बड़े सिंपल सी बात है सर, उस ड्राइंग रूम में, उस एयर कंडीशन रूम में जब हम बैठ करके सोचते हैं ना, जैसे आपके माइंड में भी तो क्वेश्चन तभी आ रहा है ना बेसिकली कि है क्या, ग्राउंड रियलिटी क्या है। अगर मैं टीचर हूं, मैं क्वालिफाइड, मैं बीएड मैंने की हुई है और मैं प्रिंसिपल भी हूं, मैं टीचिंग भी कर रही हूँ, मेरी नौकरी, मैं कहीं भी जाके 50,000 रुपए महीने की, वो मान लीजिए बीइंग ए लेडी और ए जेंट, आई कैन डू दैट। तो मुझे अगर ट्रस्ट में भी नौकरी मिल रही है 50,000 रुपए की और साथ के टीचर भी 50,000 ही ले रहे हैं मेरे जैसी क्वालिफिकेशन के, तो उसमें कोई बुराई नहीं है किसी भी तरह से, वो सर्विसेज के अगेंस्ट आप अवेल कर सकते हैं। ये तो आपके पहले वाले पार्ट का। एजुकेशन डिपार्टमेंट मुझे पता है इसमें ऑब्जेक्ट करता है, दे से कि आप नहीं ले सकते। इवन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी, वो भी करता है। स्कूल के अंदर रूम्स, जो बिल्डिंग बनी होती है, जो प्रिंसिपल अपना घर बना लेते हैं स्कूलों के अंदर, साउथ दिल्ली में सबके बने हुए हैं सर, वो सब पे ऑब्जेक्शन लगा उसके, वो कहते हैं नहीं जी इट इज नॉट अलाउड। पर वो कहता जी प्रिंसिपल जो है वो जाए कहां, फिर हमने उसको, जब एक उसकी सैलरी का स्ट्रक्चर का पार्ट है ये कि हमने उसको अकोमोडेशन दी है तो जो परक्यूजिट में बनता है आप चार्ज करिए उस हिसाब से, प्रॉपर स्ट्रक्चर बना करके। तो थोड़ा सा अगर तरीके से किया जाए, प्लानिंग करके किया जाए तो किया जा सकता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। बट वी हैव टू मेक, जैसे वो कहते हैं ना ताजमहल बनाना तो उसके 3 टेंडर पहले मंगा लीजिए, तब वो टेंडर कैसे आते हैं वो आपको पता है। तो हम इस तरह से उसको एक पहले उसका एक पूरा बोर्ड के अंदर एक जो मैनेजिंग ट्रस्टी की मीटिंग में जाए, वहां रखा जाए, वहां डिक्लेरेशन दी जाए कि इट्स ए रिलेटेड पार्टी है या जो कुछ भी है, उसके अंदर आर्म्स लेंथ में है कि उनके बाकियों को जब हम 50,000 सैलरी दे रहे हैं तो व्हाई नॉट टू दिस पर्सन, ही इज मोर, ये तो सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर भी हैं, ट्रस्टी भी हैं, और ज्यादा इनका तो इन्वॉल्वमेंट है। सो दैट इज, ऐसा नहीं कि वो मनाही है। हमने हैंडल किया था एक केस साउथ दिल्ली के एक स्कूल का था, उसमें बहुत बड़ी कोठी बनी हुई है स्कूल के अंदर ही। सो दैट वाज लेटर ऑन ITAT से परमिट हुआ, अलाउ हो गया था, कोई इशू नहीं। Anyway, thank you, sir. Thank you very much for a wonderful deliberation. And I request Rajiv Kohli ji for a formal vote of thanks, sir. Over to Kohli sahab. Thank you Unoj ji for such a meticulous, detailed analysis for all the trusts. आपने पूरी round the way, point to point, सारे के सारे 11, 12, 13 and for the exception क्या हमारा TDS या business नहीं है, and all the new forms, और जितने new forms आ गए, modules are being cross linked। कई बार if you are using a software ना कुछ गलत चला जाए तो फॉर्म आगे बढ़ता ही नहीं है। So lots of digital input is going, and इस साल की रिटर्न would be our basic return, और अगले साल से सारी की सारी इनकम यहीं से, और सारे मेरे फंड्स, मेरे ट्रस्ट, मेरे एसेट, सारे कॉर्पस यहीं से आगे चलेगा। सो यू हैव टू वेरी वेरी केयरफुल दिस ईयर रिटर्न। थैंक यू फॉर माय कोर ऑफ हार्ट सर, थैंक यू वेरी मच।